Okay. Okay, once again, good evening, everyone. We will start the class now. Okay, some students are joining. Okay, as you know the syllabus, I do not need to repeat again, but I will definitely show you the syllabus as there may be some new students today. Okay, so those who are new to the batch, let me tell them in 1 month batch only one class, that is introduction class, is just finished. Okay, that video will be available to all of you. Okay, do not worry for that. And today this will be the first class, actually means first syllabus discussion class. So till now we have not discussed anything, just introduction हुआ था इससे पहले. ठीक है, इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ है. तो आज से हम लोग जो है दिस विल बी द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ऑफिशियल क्लास कह सकते हो. हमारा जो पहला जो है टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास है. ठीक है, दिस क्लास इज फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास, राइट? ओके, so let me tell all the students that let me tell all of you about the syllabus first. Okay, so I hope those who have idea about the syllabus, that is this is the syllabus. This is the official syllabus of 2025. Okay, this is the official syllabus of 2025. It is not available in the website yet, but I got it from RI Bhubaneswar. So this is the official syllabus. Okay, this is the official syllabus of 2025, and it will be available. I think tomorrow or day after tomorrow it will be available in the official website also. Okay, so uh, what we will discuss today, that I will tell you now. Just let me show you. The 2024 में जो syllabus था 2025 में भी syllabus में कुछ भी changes नहीं आया है. Okay, so you can prefer all the study material, everything. Okay, no problem in that. So this is the syllabus. Okay, this 2024 syllabus and same in 2025 also. Not a single word is changed. Everything is as usual in the 2025 syllabus also. Okay, so what we will discuss, teaching aptitude contains around 10 topics are there in teaching aptitude. What are the 10 topics? First is your actually it started from this. The first topic is your attitude towards education, children, and teaching profession. This is the first topic. Teaching interest or interest in teaching is your second topic. Okay. Then leadership qualities and group management is the third topic. Emotional and socialization is the fourth topic. Interpersonal skill, fifth topic. Digital initiative and pedagogy, sixth. NEP 2020 and school education is seventh topic. NCBSE, eighth topic. General awareness and it is ninth topic. And one topic that I teach extra, that is called the basic introduction. Okay, because without knowing the basics, some questions definitely you cannot attend without knowing the basics. So everything we will discuss. So today we will discuss basics, that I call zero, topic zero. ठीक है, इसको हम topic zero कहते हैं. तो those who are in crash course also, उनको भी कुछ basics idea और भी जानना चाहिए. ठीक है, and those who are in 1 month batch, we will start from the very basic, because it is like concept booster batch. So we will boost your concept, or we will help you to understand the concept. Now let me tell you that as this class is live class, so all the students, okay, are suggested to speak when you want. Okay, speak and ask your doubts. जब भी आपको कुछ भी डाउट पूछना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इमीडिएटली आप डाउट पूछ सकते हो. So for the crash course student also, this topic will be one kind of new, because मैं एक अलग वे में आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, and for the 1 month batch students also it is new. So this topic we will discuss basics of teaching aptitude. Okay, basics of teaching aptitude. So, what is teaching first? Sometime questions may come that very simple questions. कभी कभी जो है RI में, see, you will get 30 questions. In that you will get 5-6 questions very simple. You will get 5-6 questions very simple और direct question from the book. हमारा डिजिटल लर्निंग का टेक्स्ट बुक से, या फिर हमारा जो है टेस्ट सीरीज से आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा. Now, which book I am referring? This book. I think you have idea about this particular book. This book, teaching aptitude book, everything I will refer from this particular book, right? So at least those who do not have any study material, I suggest at least you must have this particular book, that is teaching aptitude book. Okay, because everything I will teach will be from this particular book, teaching aptitude for RICEE by DCS Learning. Okay, so this is our book and I made by me. Okay, and our team. So definitely it will help you a lot.
Now let us start. So what is teaching? We will discuss from this particular point. What is teaching? Teaching is means interaction between teacher and student. Teaching का मतलब क्या होता है? It is interaction between teacher and students in an interactive way. Teacher and students interact in a active environment. Okay, that is called teaching. So teacher student जब एक दूसरे से actively interact करते हैं, any kind of interaction is teaching. May be passive or active. But what we want in the modern day education system इज एक्टिव इंटरेक्शन. हम जो है एक्टिव इंटरेक्शन का बात करते हैं या एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ट्रेडिशनल वे ऑफ जो टीचिंग होता है उसमें पैसिव पार्टिसिपेशन होता था. इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग टीचर यूज्ड टू टीच एंड स्टूडेंट्स were used to just listen to them and memorize the concept in the traditional like way of teaching में lecture method जो है तुम्हारा उसमें what they used to do, that is a passive way. Just student listen to the teacher and whatever the teacher is saying they were just following that. But in the modern days education system, we follow what? We follow active participation by the students. Teacher teach the students and students who interact with the teacher. So it is two-way communication. But lecture method is one kind of one-way communication. But here it is two-way communication. Means जब teacher पढ़ा रहे हैं, at the same time students also ask some question to the teacher. Now teaching includes all the activities of providing education to others. हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वट एवर एक्टिविटीज आर देयर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन टीचिंग. एंड द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड टीचर. वेरी सिंपल. Okay, and teacher uses different methods for giving best knowledge to his students. Okay, am I audible properly? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. so teacher uses different method. हम जैसे टीचर आपको देखो बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आता है. So during teaching I will like discuss some questions also, some previous year question. So one PYQ was there. When PYQ was there in previous year, one question asked when teacher like use different methods. टीचर कब जो है डिस्कशन मेथड कब इस्तेमाल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था. तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड. डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, inductive method, deductive method, that we will discuss in our upcoming classes. So one method is discussion method. Means teacher will ask some question to the students and students also ask some question to the teacher. So teacher answer the question of the student and also student answer the question given by the teacher. So that is called discussion method. Okay. So discussion method कब use करते हैं? जैसे for example option will be there. Topic is easy topic है या टॉपिक डिफिकल्ट टॉपिक है या टॉपिक वेरी डिफिकल्ट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है. टॉपिक वेरी डिफिकल्ट है, कौन सा केस में आप जो है डिस्कशन मेथड यूज करोगे? ऑल ऑफ दिस दिया होगा या नॉन ऑफ दिस दिया होगा. तो व्हेन टॉपिक इज वेरी इजी वी जनरली यूज लेक्चर मेथड. जब टॉपिक बहुत आसान है वी डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट, हम लेक्चर मेथड उसमें इस्तेमाल करते हैं. व्हेन टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट वी नीड टू डेमोन्स्ट्रेट सम एग्जांपल टू द स्टूडेंट्स. सो उस केस में हम क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे और हम जो है प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड करेंगे. इनमें स्टूडेंट्स का मैक्सिमम सेंस इन्वॉल्व होगा. सो हम डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट काइंड ऑफ मेथड वी कैन यूज. बट व्हेन टॉपिक इज डिफिकल्ट एनफ एट दैट टाइम वी यूज डिस्कशन मेथड. बिकॉज ज्यादा डिफिकल्ट केस में भी डिस्कशन मेथड से काम नहीं बनेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन. सो यू कैन नॉट यूज डिस्कशन मेथड for very difficult topic, and you should not use discussion method in a very easy topic because it will take a lot of time. Okay, that's why we use discussion method when the topic is difficult only. Okay, not very difficult, not very easy. Okay, so teachers are the backbone of society. Teacher are also called as the nation maker. Teacher are also called as the nation maker of the society. Okay, teacher play vital role in nurturing the minds of young child or young people. टीचर जो है बच्चों का यंग स्टूडेंट्स के माइंड को नर्चर करते हैं. टीचर हेल्प्स इन द बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट. अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ाई नहीं करता है, थोड़ा बिगड़ा हुआ उसका स्वभाव है, तो टीचर यूज टू शेप देयर बिहेवियर इन अ प्रॉपर वे. बिकॉज टीचर आर कॉल्ड नेशन मेकर, सो दे मेक इफेक्टिव सिटीजन. इफेक्टिव सिटीजन बनाने के लिए टीचर जो है बहुत मेहनत करते हैं. टीचर्स लाइक द एजुकेशन सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव है कि टीचर do behavioral modification of the student or the shape the mind of the students in a proper direction or the channelize the energy of youth. This kind of questions also it is asked. Okay, now कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ? I am teaching from the basic introduction. I am teaching from basic introduction. Those who have the study material they can open the first page or it is from the first chapter actually.
टॉपिक जीरो जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप बुक देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉलो द लेक्चर, फॉलो द पीपीटी। सो हाँ, टीचर्स आर वेरी प्ले वाइटल रोल, okay, vital role for nurturing the young mind, okay, and they, the best teacher always gives knowledge and skill। टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देते हैं, टीचर ऑल्सो प्रोवाइड स्किल्स, टीचर ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस, टीचर ऑल्सो प्रोवाइड ऑल sort of help that a student need, okay। So teacher always try to teach in a effective manner, okay, in a effective manner। That's why one question asked in PYQ, previous year question में एक और क्वेश्चन आया था, टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट इन विच मैनर। टीचर का जो बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है, टीचर का बिहेवियर, टीचर का रिलेशनशिप बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, वेर इज पीपीटी, दिस वन इज पीपीटी दैट आई एम शोइंग, इज इट विजिबल टू यू, स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the PPT that I am showing, okay, I think it is visible to all of you, yes or no? Yes, Yes. not visible, Kavita Rani, Visible, sir. Yes, sir. Visible, किस sir. Visible, sir. किसको विजिबल नहीं है प्लीज एक बार इन्फॉर्म करो, दोज हु आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, सी द पीपीटी, No, sir. इन्फॉर्म मी। हाँ, if you are not able to like see the screen, then just rotate your mobile, rotate your device like this, okay, you have to rotate your device, okay, and then open the like PPT that I am teaching, just scroll, okay, just scroll and open what I am teaching, okay, you need to just scroll so that you can like see, okay, it has been pinned also, okay, so let's continue, okay। So what kind of behavior a teacher should be with the student, one kind of behavior is friend, okay, one is your like leader, third is your father, and fourth is your like anything else, none or whatever। So father like behavior should be there, means we have to take, not only teach the students but also take care of the students। So हमको बच्चों का take care भी करना पड़ता है, this is called a father like relationship। We have to understand the feelings of the students, we have to make friendly relationship of the students, friendly relationship with the students, but हमको friend नहीं बनना है कि बच्चा आपको खातिर ना करे, हम अपने दोस्त को उतना खातिर नहीं करते हैं, राइट, यस और नो? Yes, sir. दोस्त से डरते नहीं है बट फादर से डरते हैं ना, हाँ। सो दैट्स वाई आपको फादर लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। अगर वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग का बात करें, ठीक है, वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, एक सेकंड, सम स्टूडेंट्स आर ओके, अगर वन सेंटेंस डेफिनेशन, एक्चुअली वन वर्ड अगर बोले तो ट्रेन, टीचर, टीचिंग इज समव्हाट ट्रेनिंग, वन वर्ड में बोले तो टीचिंग इज समवन लाइक ट्रेनिंग, बट टीचिंग और ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है, ठीक है, टीचिंग और ट्रेनिंग में भी डिफरेंस है। टीचर का जो है ट्रेनिंग के तरह का काम है, बट टीचर और ट्रेनिंग में भी डिफरेंट है। हाँ, यस, आई विल शेयर द पीपीटी आफ्टर द क्लास, आई विल शेयर द पीपीटी। सो टीचर क्या करते हैं, ट्रेन द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फूट इन द मॉडर्न सोसाइटी। आपके मम्मी पापा आपको क्यों पढ़ा लिखा क्यों पढ़ाते हैं आपको, वाई आपके फादर एंड मदर स्पेंड मनी ऑन योर एजुकेशन, आपके मम्मी पापा आपके एजुकेशन के लिए इसीलिए जो है पैसा खर्चा करते हैं, सो दैट आप जो है एजुकेटेड इंसान बनो, और जो एजुकेटेड इंसान होता है दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फुट, अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना, मतलब अर्न, अपने खुद के लिए अर्न कर पाना, या फिर उसको हम कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। सो जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए चाहते हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, वैसे ही काम टीचर का होता है। टीचर यूज टू टीच यू, ट्रेन यू, गाइड यू, गिव यू नॉलेज, सपोर्ट यू, सो दैट यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन फुट इन द मॉडर्न सोसाइटी, ओके। कल बस इंट्रोडक्शन हुआ था, जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सिलेबस, कल कुछ नहीं पढ़ाया गया था, जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डू नॉट वरी फॉर दैट, दैट वीडियो विल बी अवेलेबल। टुडे इज द फर्स्ट क्लास एक्चुअली। सो टीचर का भी यही ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके फादर मदर का ऑब्जेक्टिव होता है, टीचर्स का भी वही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकेंगे, मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकेंगे। नाउ इन टीचिंग थ्री मेन एस्पेक्ट्स आर देयर, समबडी स्पीकिंग एनीथिंग? Sir, screen is not visible to me. टू होम? Kavita Rani. कविता रानी, जस्ट स्क्रोल, ठीक, थोड़ा स्क्रोल करो, ठीक है, स्क्रोल करो, देखो कहाँ पे स्क्रीन विजिबल हो रहा है, ठीक है।
आपके सामने अभी क्या दिखा रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे। फोन को रोटेट करो, ठीक है, रोटेट द फोन। और मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। ओके, हाँ। सो देर आर थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। ओके, जो भी माइक ऑन किया है तो म्यूट कर दीजिए प्लीज, ठीक है, एक बार म्यूट कर दो, फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, so there are three main aspects of teaching. One is teacher, teacher will be there, teacher होंगे, students होंगे, और educational context, educational context, ठीक है। टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, और जैसे स्कूल फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट जो पढ़ाएंगे। टीचर है, स्टूडेंट है, तो कोई कॉन्टेक्स्ट होगा जिसके ऊपर टीचर पढ़ा रहे हैं। सो दिस आर द थ्री मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग, these are the three main aspects of teaching. Okay, now अब अगर हम लोग कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, द कंप्लीट प्रोसेस of education contain four factors: teacher, student, context, as well as one more thing is the subject matter। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है, गूगल मीट हमारा कॉन्टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ। और आपके लिए जैसे स्कूल में पढ़ाओगे तो स्कूल आपका क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट या सेटिंग होगा, ठीक है। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर द थिंग। ओके, screen is not visible. You just need to scroll. Okay, just need to scroll so that it will be visible to you. Kavita Rani, you need to scroll it. Okay, scroll करके देखो जहां पे visible हो रहा है उसको open करो, ठीक है। Otherwise, I will share the PDF also after the class. So these are the four common factors that a teacher that are required for education. Okay. Now, basic components of effective teaching environment. What are the effective like things in the effective teaching environment? So see, teacher must have knowledge and love with affection for the students. Teacher must have knowledge also, knowledge about the students. हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो we must have knowledge about the students. हम हमारे अंदर बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस या स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, वट एवर, तो वो नॉलेज मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अच्छा समवन आस्किंग कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस से कहाँ पढ़ा रहे हो, सेटिंग कौन सा एनवायरमेंट में पढ़ा रहे हो, कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट। लाइक स्कूल आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट, स्कूल में पढ़ा रहे हो तो स्कूल इज योर कॉन्टेक्स्ट। ओके, हाँ नाउ, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप सब RICEE के एस्पिरेंट्स हो, तो मुझे पता है कि आप RICEE एग्जाम देने जा रहे हो, एंड RICEE एग्जाम दिस इज द पर्टिकुलर सिलेबस। सो आई हैव टू now first I need to know your knowledge, that is that you are 12th pass out, graduation pass out, or like you have not understood anything related to teaching aptitude. So I have to teach you the basics of teaching aptitude, so that you can understand. So a teacher must have knowledge about the children. This is called psychology, this is called child psychology, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है ये, टीचर के पास क्या होना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। एज वेल एज टीचर मस्ट हैव लव एंड अफेक्शन फॉर द स्टूडेंट्स, मींस टीचर शुड ट्रस्ट द स्टूडेंट्स, टीचर शुड ट्रस्ट द स्टूडेंट, ठीक है। टीचर को बच्चों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि एवरी चाइल्ड कैन गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। एक टीचर कभी भी बायस नहीं होना चाहिए कि इसका होगा सिलेक्शन, इसका नहीं होगा सिलेक्शन। ए टीचर मस्ट बी लाइक मस्ट बी अनबायस्ड, इन सारे स्टूडेंट्स के प्रति उनका जो है अफेक्शन होना चाहिए। लव विद अफेक्शन का मतलब है कि एक जैसे फादर अपने बेटा या बेटी का जिस तरह से केयर करते हैं, जिस तरह का लव एंड अफेक्शन होता है अपने चिल्ड्रन की, खुद के चिल्ड्रंस के प्रति, टीचर्स भी एक तरह से क्या होते हैं, बच्चों के लिए वो सब कुछ होते हैं टीचर, ठीक है। सो दैट्स वाई बहुत सारे जो आपका सॉन्ग है, लाइक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, यू हैव आइडिया अबाउट इट। ओके, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्हाई? बिकॉज टीचर्स आर द top, teachers are in the top position of the society. So that's why teacher's position is very important. So teacher need to plan everything beforehand. Before teaching, teacher का हर एक वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेंटेंस टीचर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। टीचर नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली एंड ऑर्गेनाइज द टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली। क्लास में आप जब पढ़ाने जाओगे, मे बी teaching one like 40 students or 50 students or 30 students, so 30 different minds are there in your class, so you have to keep your teaching method accordingly. You have to keep your teaching method flexible. आपको rigid नहीं होना चाहिए, you have to be flexible for the student, so that if the students are not understanding particular thing, then आपको आपका teaching method को change करना पड़ेगा,
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लेक्चर मेथड में पढ़ा रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू लेक्चर मेथड, तो देन आई हैव टू चेंज माय मेथड टू डिस्कशन मेथड, एंड दैट मस्ट बी प्री प्लान्ड ऑल्सो। आई हैव टू प्रिपेयर व्हाट एवर आई एम टीचिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक में 40-50 पेज का दिया हुआ है, ठीक है, बट आई हैव कंपाइल्ड दिस इन ए स्मॉल पीपीटी। तो मैंने प्लान किया हुआ है, प्रिपेयर किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया है मटेरियल्स को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो ये बुक दिया गया है, बुक में भी सब कुछ प्रॉपरली प्लान करके ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी बुक से मिले। सो टीचर्स जब क्लास में पढ़ाने आते हैं उनका काम यही होता है, दे मेक योर वर्क इजी। दैट्स व्हाई देयर इज ए टर्म। अभी जैसे पीवाईक्यू का एक फिर से जब जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको पीवाईक्यू का एक कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा, ठीक है। टीचर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? टीचर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्शन 1, ठीक है। पीपीटी visible, I think it is visible. Please check your device. एक काम करो, those who are not able to see, please join again. प्लीज ज्वाइन अगेन। आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से एक बार ज्वाइन करो। कविता रानी एंड मनीष, प्लीज डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन अगेन। ओके, कविता रानी एंड Yes, sir. मनीष, डिस्कनेक्ट एंड ज्वाइन अगेन। एक बार फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से ज्वाइन करो। Okay, sir. ओके, आई एम वेटिंग। सर मेरा विजुअल हो गया। हो गया, ओके, ठीक है। मनीष, जिनका नहीं दिख रहा है डिस्कनेक्ट करके, हाँ हो गया ना, ठीक है। सो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड यहाँ पे फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर। फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा आंसर? All of the above. टीचर्स का ऑल ऑफ द अबव। टीचर को बच्चों के सामने टीचर्स एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं अप टू ए सर्टेन लिमिट। टीचर आर आल्सो कॉल्ड एज फिलोसोफर, टीचर आर आल्सो कॉल्ड एज फैसिलिटेटर। नाउ व्हाट इज द फैसिलिटेटर मीनिंग? मीनिंग ऑफ फैसिलिटेटर मींस दोज हु मेक योर वर्क इजी। फैसिलिटेटर मेक्स वर्क इजी, आपका काम आसान बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी फॉर एग्जांपल 1 मंथ बैच ज्वाइन किए हैं, किताब देने से भी पढ़ सकते थे, बट व्हाई यू हैव ज्वाइंड 1 मंथ बैच, और व्हाई यू गो टू स्कूल, और व्हाई यू टेक कोचिंग? Why? Because you trust the teacher that teacher can make your work easy. जैसे आप जहाँ पे भी कोचिंग पढ़ते हो, whatever you do because you think that it will make your work easy. So this is what facilitator. Teachers are, that's why called as facilitator of knowledge, because they make your work easy. They help you to work in a smart manner, smart work. So teacher must be enthusiastic for teaching. मुझे पढ़ाना अगर अच्छा नहीं लगता है, I am not enthusiastic for teaching, then I cannot become an effective teacher. So all the students, those who want to like become a teacher, they must have enthusiasm for teaching, means interest for teaching, excitement for teaching. Okay, and I suggest all the students, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना बीएड या बीएससी बीएड व्हाटएवर इन प्रोग्राम, ट्राई कि एटलीस्ट एक ट्यूशन आप करो, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना है ट्यूशन के लिए, बट एक ट्यूशन एटलीस्ट आप करोगे तो इट विल हेल्प यू टू लाइक improve your excitement or enthusiasm for teaching, because you get a lot of respect. Enthusiastic means enthusiasm or excitement, one kind of excitement. Enthusiasm means excitement. Okay, so teacher must have ability to stimulate the learner's thought and interest. Learners का thought and interest को stimulate कर पाना चाहिए, means generate कर पाना चाहिए, जागृत कर पाना चाहिए और increase कर पाना चाहिए, ठीक है। Teacher must be able to stimulate the thought and interest. Yes, Shivam Kumar asking any question? सर एक क्वेश्चन था कि अगर जो स्टूडेंट किसी टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं तो हमें टीचिंग मेथड चेंज करना चाहिए या फिर रीजन जानना चाहिए पहले? See, if the students are not able to understand, means not able to understand, उसमें आपको रीजन जानने का कोई जरूरत नहीं है, because he is not able to understand. हाँ, ऑप्शंस के हिसाब से देखना है, चारों ऑप्शन जो भी दिया है, but if a student is not able to understand, then you need to change your method, change your teaching method. That's why I have written is teaching method is flexible. Okay, teaching method should be flexible. If a student is not able to focus, then you can ask the reason, but not able to understand, that means you have to stop and teach again with a different method, with a different technique, or with using some real life situation or example. Very good question. So जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, always use real life examples for the student. जैसे आप अभी जैसे शिवम ने जो डाउट पूछा, दैट इज a real question, real scenario, तो उसको मैंने अभी एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया। तो यू हैव टू गिव रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू द स्टूडेंट। ऐसा होता है बच्चों के सामने, तो यू हैव टू गिव रियल लाइफ, हैव टू चेंज योर मेथड ऑफ
टीचिंग. सिद्धार्थ सत्यम पटेल, एनी डाउट? यस सर, अगर एक क्लास है जैसे उसमें 40 या 50 बच्चे हैं, उसमें से एक दो ही है जिनको समझ में नहीं आ रहा है जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और बाकी बच्चों को ठीक लग रहा है, वो टीचिंग मेथड के साथ कंफर्टेबल है, तो उस केस में हमको पहले रीजन जानना पड़ेगा If one or क्यों two उनको students are समझ में not नहीं आ रहा है. understanding, see, if they are not understanding, na, in that case, what is there? You have to make them understand. Okay. If the students are not able to focus or disturbing the class, disturbance कर रहे हैं, focus नहीं कर पा रहे हैं, in that case, you need to know the reason. Now, if they are not understanding, means you have to explain in a more better manner, because in the class you will have four different kinds of students. One is like gifted students, means बहुत extremely talented, super talented students होते हैं. ठीक है. कुछ जो स्टूडेंट जो होते हैं तुम्हारे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, और बहुत और कुछ कुछ स्टूडेंट जो है बहुत बिलो एवरेज के स्टूडेंट होते हैं. ठीक है. तो तीन लेवल स्टूडेंट्स तुम्हारे होते हैं. गिफ्टेड एक्चुअली चौथा लेवल होता है. ठीक है. गिफ्टेड बहुत कम बच्चे होते हैं. तो देखो, आपकी क्लास में फॉर एग्जाम्पल दो तीन ऐसे स्टूडेंट, दे आर स्लो लर्नर. सो in that case, if you know that they are slow learner and they are not understanding because maybe this is difficult for them, तो उनके केस में आप अपना मेथड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. ठीक है. तो बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इन द लाइक क्लास. गिफ्टेड मतलब जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, उसके बाद टैलेंटेड, उसके बाद तुम्हारा होता है एवरेज, और लास्ट में तुम्हारा स्लो. तो चार जो लेवल है उसमें आपको जो है, मेनली हमारे स्कूल में 3 लेवल के बच्चे पाए जाते हैं. गिफ्टेड बहुत रेयर बच्चे होते हैं. ठीक है. तो यू हैव टू फोकस कि आपको जो है अपना मेथड चेंज करके उनको समझाओ. ठीक है. हाँ, इन सम केसेस यू नीड टू नो द रीजन ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन गिवन. क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर. So we'll practice the question, the kind of question. Now, basic requirement in teaching. Now, see, there are 3 variable: teacher, student और जो factors हैं. Mainly 3 है, 4 भी कर सकते हो तुम्हारा context या subject matter. ठीक है. तो mainly 3 है: teacher, student and environment. Now, which kind of environment is preferable for teaching? This environment is called as conducive environment. See, whatever I am writing here is are keywords or key terms. Okay, that you need to remember. So हम बच्चों को we have to teach in a conducive environment. So what is conducive environment? Conducive environment means जहाँ पे बच्चे बिना डरे, free of all fears, जहाँ पे बच्चों के सामने कोई डर ना हो, बच्चा बिना डरे जब आपसे सवाल पूछेगा, that is called conducive environment. Okay, you have to teach in a conducive environment. You have to create a conducive environment for the teacher, for the students. So that is very important. Now sometimes environmental factor is important because अगर आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहाँ पे environment strict बहुत ज्यादा जो है conducive नहीं है, या नॉइज है, तो वहां पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते. तो दैट्स एनवायरमेंटल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स कम्युनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. नाउ इट इज इफ यू फॉलो एनईपी. ओके. एनईपी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा. इन एनईपी इट इज रिटन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर. मीन्स कम्युनिटी शुड ऑल्सो सपोर्ट द स्टूडेंट्स. अर्चना इज आस्किंग अबाउट पेज नंबर 1 से 40 के बीच में है. आई हैव जस्ट समराइज द थिंग्स. ठीक है. बेसिक में आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं आपको समराइज कर देता हूँ, आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना. ठीक है. दोज हु हैव द बुक दे कैन रीड फ्रॉम पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 45 तक. मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ, आप पेज नंबर 1 या 2 को देख सकते हो. ठीक है. बट मैं आपको समराइज करके बता दूंगा. यू हैव टू like read everything from the book. ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. एनईपी ने साफ साफ लिखा है कि कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कहीं पे स्कूल है तो स्कूल ऐसे जगह पे होना चाहिए वेयर लेस नॉइज शुड बी देयर, प्रॉपर कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर, एवरीथिंग. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट डे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनलिज्म. द टीचर मस्ट हैव प्रोफेशनलिज्म. ओके. कंडूसिव नेचर में क्या टीचर का पर्सनल नेचर भी मैटर करता है? यस, डेफिनेटली. टीचर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा डरा के रखते हैं बच्चों को, तो बच्चे फ्री नहीं होंगे, डाउट नहीं पूछेंगे. तो कंडूसिव में आपका नेचर भी ये है. तो इसके ऊपर पूरा सिलेबस है. ठीक है. टीचर का पर्सनैलिटी के ऊपर भी सिलेबस है आपका. ठीक है. दैट इज योर लीड योर इंटरपर्सनल स्किल. सिलेबस है इसके ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड में. ठीक है. दे आस्क यू क्वेश्चंस ऑन जो जो आपने पूछा अभी. ठीक है. यस संपूर्ण, एनी डाउट? Yes. 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 Not audible. Not audible now.
Yes, you are not audible. Okay, so let's continue. She will ask again. So professionalism. Okay, professionalism means teachers professionalism. आपको अपना काम with a proper professionalism के साथ करना चाहिए. मतलब friendly up सर to a certain limit. Yes, सर मैं अभी क्वेश्चन पूछ लूं। yes, yes. You are audible now. सर एक मीनिंगफुल टीचिंग के लिए एनवायरनमेंट जरूरी है या फिर मटेरियल या फिर टीचर का जो क्वालिफिकेशन है वो जरूरी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर? मोस्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्या है मीनिंगफुल टीचिंग के लिए? ओके. सो मीनिंगफुल टीचिंग के लिए क्या चाहिए? मीनिंगफुल टीचिंग के लिए आपने बोला, एक बोला इंफ्रा, बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या बोला आपने? सर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बोला आपने. ओके, और? टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्वालिफिकेशन बोल लेते हैं या फिर पेडागोजी जो है। ओके, टीचर क्वालिफिकेशन और पेडागोजी. थर्ड ऑप्शन? सर इतना ही। एक और ऑप्शन बोल दो. अच्छा ठीक है, इन तीनों में अगर बोलोगे तो मीनिंगफुल टीचिंग डिपेंड्स ऑन टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड पेडागोजी. ठीक है. एनवायरमेंट ये सब थर्ड फोर्थ फैक्टर होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टीचर्स क्वालिफिकेशन. मीन्स इफ आई एम नॉट टीचिंग इन ए प्रॉपर मैनर, इफ आई एम नॉट एलिजिबल टू टीच यू, then I may not teach you properly. और if I am not using proper pedagogy, then you may not understand. अगर आपको डिस्कशन मेथड में समझ में आता है लेकिन मैं आपको लेक्चर मेथड में समझाऊंगा, you may not understand. So that's why pedagogy is most important for meaningful teaching. Okay. तो सर अगर स्टूडेंट के पास कोई मटेरियल ही नहीं है पढ़ने के लिए, उसे समझ में कैसे आएगा? पेडागोजी अच्छा, जितना भी अच्छा हो। आपने एक बोला मटेरियल. ओके, हाँ हाँ, तो बोलो बोलो. यस, टेल. सर अगर स्टूडेंट के पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए पर टीचर्स का क्वालिफिकेशन टॉप लेवल पर है, तो स्टूडेंट कैसे समझ पाएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मटेरियल नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट हैव द बुक, देन क्या मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ? अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक? शॉर्ट टर्म लर्निंग हो जाएगा। हम व्हाट? लिसनिंग के थ्रू कितना याद रख सकते हैं? आप एक चीज मुझे बताओ, तो पढ़ के ज्यादा याद रहता है या कुछ सुन के ज्यादा याद रहता है? सर मतलब सुन के किसी से ज्यादा सुन के. याद रहता है। हाँ, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते भी हो, सुनते भी हो और रिवाइज भी करते हो तो सबसे ज्यादा याद रहता है. सो सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू वन थिंग. मुझे आपने मुझे पूछा कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है इसको पढ़ने के लिए, क्या मैं आपको ये समझा सकता हूँ विदाउट मटेरियल? ये सुनना. यस सर। सो टीचर्स, जो मीनिंगफुल टीचिंग जो है, टीचर्स के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है. टीचर्स का क्वालिटी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. बिकॉज टीचर्स अब जो है ये सब आपके लिए प्लानिंग, प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द कंटेंट, दे डू दिस थिंग. बट yes, definitely the material और टेक्स्ट बुक आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट फॉर देखो, आपके बुक में कुछ लिखा गया है, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट इट, देन द मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगा. ठीक है. मीनिंगफुल लर्निंग विल बी देयर अगर आपको टीचर जो है प्रॉपर पेडागोजी, टीचर्स पेडागोजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्वालिफिकेशन तो मतलब ठीक है, नॉट नॉट लाइक इंपॉर्टेंट, बट पेडागोजी जो आपने बोला, पेडागोजी इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस केस. तो जब जैसे आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा ना, तो आपका जो है क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको जो है ये करना पड़ेगा. नाउ एज मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर देयर, लेट मी टेल यू कि इन द टीचिंग एप्टीट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट लग सकते हैं. तो इन दैट केस यू हैव टू चूज द मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन. मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन. ओके. और मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन, आपको मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन को जो है चूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट्स हियर द लाइक मटेरियल से भी ज्यादा क्या है आपके लिए क्वालिफिकेशन, जो टीचर्स का पेडागोजी, टीचर्स वे ऑफ मेकिंग अंडरस्टैंड इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इस तरह का जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, वी विल डिस्कस अगेन ऑल्सो. ओके. सो प्रोफेशनलिज्म मीन्स हाउ आई एम टीचिंग. मैं अपना प्रोफेशनलिज्म को ये रखना चाहिए. प्रोफेशनलिज्म में हम आपको इसको हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. इन योर लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट, हाउ टू मेक प्रोफेशनलिज्म, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. ठीक है.
तो प्रोफेशनल मतलब टीचर्स को फ्रेंडली रहना है, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट तक फ्रेंडली रहना है। बच्चों को लगना चाहिए कि आप एक टीचर हो, आपका योर पर्सनालिटी मस्ट बी लाइक ए टीचर, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर स्पीकिंग मस्ट बी लाइक ए टीचर। सो दैट्स टीचर का एक आपको पता है कि टीचर का पहचान ऐसा होता है। तो जो प्रोफेशनलिज्म है, यू नीड टू मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म। दैट इज वन थिंग इज कॉल्ड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। टीचर का प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यू हैव टू फॉलो दैट कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो। ठीक है, सो कोड ऑफ कंडक्ट को भी आपको फॉलो करना पड़ता है, सो दैट आपका जो है प्रॉपर जो समाज में जो रेस्पेक्ट है वो बनाए रहे। नेक्स्ट, सुइटेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। आई जस्ट टोल्ड यू, टीचर को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में पढ़ाना होता है। वी हैव टू टीच इन ए प्रॉपर सुइटेबल और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट सो दैट द स्टूडेंट्स कैन आस्क यू एनी डाउट एंड यू कैन guide them in active participation method. Okay. Next, teacher and student का relationship is very important. Teacher student relationship must be a friendly relationship, friendly up to a certain limit, जो father like होता है। ठीक है, friendly up to a certain limit का जो आपका रहना चाहिए। And whatever doubt they have, they must be free to ask, मतलब वो freely आपसे पूछ सकें, ऐसा जो है relationship होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर टू लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट्स का प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत ज्यादा जो है मस्ती मजाक करते रहेंगे, फोकस नहीं करेंगे, इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टीचिंग। सो प्रॉपर डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, proper discipline is also very important. And regarding this, we will discuss or elaborate more in the group management or the classroom management. We will elaborate more in this particular topic. ठीक है, so next is your teacher student devotion to teaching and learning. Teacher and students must be devoted towards teaching and learning. Teacher and students both have some goals and they need to work to achieve the mutual goal. Students का goal क्या है? Student goal is to get good marks, get a good job or whatever, become a good citizen in the society. Teacher का goal क्या है? Make them to become good citizen in the society, make them to get good marks in the exam. So दोनों का goal है। Teachers का goal क्या है? To complete the lesson in proper time and make them understand also. बच्चों को not only खाली पढ़ाए but also उनको समझाए। तो दोनों का mutual goal fulfill होना चाहिए। For that both must be devoted towards the teaching and learning. So अभी हम teaching समझ गए, टीचिंग समझ गए, एप्टीट्यूड क्या है समझेंगे, फिर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड समझेंगे। टीचिंग समझ गए, एप्टीट्यूड समझेंगे, देन हम टीचिंग एप्टीट्यूड समझेंगे। सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट इज द इंटरनल एबिलिटी ऑफ टैलेंट। ये हमारा पेज नंबर 1 में है। ठीक है, अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हो तो बुक का पेज नंबर 1 में है, बुक नहीं है तो ये पीपीटी से समझ सकते हो। सो एप्टीट्यूड ऑफ एनी स्टूडेंट इज द इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट दैट मेक द डिफरेंस विद अदर्स। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड किसी भी स्टूडेंट का इंटरनल एबिलिटी होता है जो कि आपको किसी और से अलग बनाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनका जो है टैलेंट जो है, दे आर वेरी ग्रेट क्रिकेटर्स। ठीक है, लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम लोग बोलते हैं। तो उनका जो टैलेंट है क्रिकेट में, वो उनको दूसरों से अलग बनाता है, रिकॉग्नाइज्ड बनाता है। सिमिलरली कोई फुटबॉलर है, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, तो वो उनको जो है फुटबॉल की वजह से उनको जो है वो दूसरों से अलग है। सो एप्टीट्यूड इज समवॉट दैट मेक, और इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट सो दैट यू कैन बिकम ए गुड टीचर और गुड प्लेयर, व्हाटएवर। सो practice is most important. And to be strong in aptitude, student must have enormous interest in the areas in which they are interested. For example, आपको टीचर बनना है, you want to become a teacher, तो आपका टीचर बनने के लिए सबसे पहला चीज इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका टीचिंग के प्रति इंटरेस्ट होगा, तब इंटरेस्ट की वजह से आप जो है, देखो जिनका टीचिंग के प्रति इंटरेस्ट होता है वो खाली नहीं बैठ पाते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाएंगे या अपने भाई बहन को पढ़ाएंगे, विल टीच योर सिबलिंग्स ऑल्सो। ओके, भाई बहन और नेबर्स, किसी को भी पढ़ाते हैं। जिनका टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, दे टीच एनीवन, वो अपने दोस्तों को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, सो दे प्रैक्टिस अ लॉट। Okay, so those who are interested in teaching, they practice teaching, and if they practice teaching, then they will gain talent or aptitude. अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट है और उसका इंटरेस्ट है तभी आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका इंटरेस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी आप प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तभी आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा। द मोर द इंटरेस्ट, द मोर प्रैक्टिस यू विल डू एंड द मोर एप्टीट्यूड विल बी डेवलप। Okay, so teaching aptitude totally depends on the interest towards teaching. That's why aptitude interest के ऊपर depend करता है। Okay, yes, in interest
depends on interest. Enthusiasm depends on interest. Okay, and your practice depends on enthusiasm, aptitude, and you will become successful. Yes, definitely. Those who have aptitude, they will definitely become successful. तो जितना ज्यादा एप्टीट्यूड उतना सक्सेस का चांस आपका बढ़ेगा, सक्सेस चांस आपका उतना बढ़ेगा. ठीक है. सो दैट्स वाई इसके ऊपर भी एक टॉपिक है. कहाँ पढ़ेंगे? यहाँ पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक में, इंटरेस्ट इन टीचिंग. ठीक है, इंटरेस्ट इन टीचिंग में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, फर्दर इंटरेस्ट के बारे में. नाउ टू बी ए गुड टीचर वन मस्ट हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, एज वेल एज यू मस्ट हैव प्रॉपर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. The culture that the students follow, you have to give respect to the culture. For example, you are a Hindu teacher but posted in a Muslim school. Yeah, posted in a school where Muslim majority is more. Then you have to see. You do not need to adopt that culture, but you have to respect that culture, because we are in a country which is secular. Secular country means हम जो है हर एक धर्म को समान दृष्टि से देखते हैं. ओके, तो दैट्स व्हाई हम सबको रेस्पेक्ट करेंगे. कल्चर हमारा इंडिया का एक कल्चर है. ठीक है, तो हम उस कल्चर को हमेशा बच्चों के सामने रखेंगे. वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क which will be against our culture, and we should behave in such a manner that we expect from other. That's why teacher are called as mirror of the society. टीचर को मिरर ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं. टीचर आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिरर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज एक जगह पे जहाँ पे अच्छा टीचर होता है, फॉर एग्जाम्पल फुले, ज्योतिबा फुले, जहाँ पे ज्योतिबा फुले जैसे लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग हैं, जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, जहाँ वो लोग हैं, वहाँ का जो सोसाइटी डेफिनेटली डेवलप होता है. दैट्स व्हाई टीचर्स आर कॉल्ड एज मिरर ऑफ द सोसाइटी. टीचर्स आर कॉल्ड एज मिरर ऑफ द सोसाइटी. तो अगर आप अच्छा बिहेवियर दूसरों से चाहते हो तो आपको भी दूसरों को अच्छा बिहेव करना पड़ेगा. अगर आप किसी को गाली देते हो तो रिटर्न में वो भी आपको गाली दे सकता है, अच्छा बिहेव तो नहीं करेगा. दैट्स व्हाई टीचर मस्ट हैव प्रॉपर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. आपका एथिक्स, आपका बिहेवियर, आपका कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, दैट यू वांट others to follow, because you are the mirror of the society, you are the nation maker. So the person with real teaching aptitude must be curious, open minded, and obviously he or she must have faith, must have like in deep knowledge of subject, including love and faith for the students. I already told you that a teacher must have what, love and faith for the students. बच्चों के प्रति आपका जो है एक ये रहना चाहिए, अफेक्शन रहना चाहिए कि आपका बेटा बेटी को आप जैसा इंपॉर्टेंस देते हैं आपके स्टूडेंट्स को भी वैसे ही इंपॉर्टेंस देंगे. एंड रियल टीचर मस्ट बी क्यूरियस. अगर आप चाहते हो कि बच्चे क्यूरियस हो, दैट यू ऑल्सो मस्ट बी क्यूरियस अबाउट डिफरेंट कंसेप्ट. ओके, सो दैट आप जो है बच्चों को अच्छी चीजें पढ़ाएंगे. ओके, क्लियर. जैसे कुछ न्यू टॉपिक कुछ आया है, ठीक है, तो न्यू समथिंग न्यू डेवलपमेंट इज बीइंग डन, सो यू एज ए टीचर यू हैव टू टेल दैट टू द स्टूडेंट्स आल्सो. जैसे करंट इंफॉर्मेशन जो भी हमको देना होता है बच्चों को, हम करंट इंफॉर्मेशन भी देंगे, करंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे. टीचर मस्ट बी ओपन माइंडेड. देखो, अगर आप क्यूरियस हो तो आपके बच्चे भी क्यूरियस होंगे. अगर आप हर दिन बच्चों को कुछ नया टॉपिक बताते हो तो बच्चे भी जो है क्यूरियस होंगे कि आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. ठीक है. If you practice this kind of thing, for example, आप साइंस के टीचर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, whichever teacher you are, if you are going to the class with one new information, okay, or extra information, suppose something that students may not know, or very current information, तो हर डेली अगर आप कुछ नया इन्फॉर्मेशन देते हो तो बच्चे भी क्यूरियस रहेंगे, बच्चे भी पूरा वेट करेंगे आज टीचर आएंगे कुछ हमको नया चीज बताएंगे. So if you are curious, then your students will be definitely curious. So that's why curiosity is also a key term. स्टूडेंट्स मस्ट बी क्यूरियस, स्टूडेंट्स मस्ट बी क्रिएटिव. तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए आपको भी एज ए टीचर क्यूरियस एंड क्रिएटिव होना पड़ेगा. एंड यू मस्ट बी ओपन माइंडेड ऑल्सो. यू मस्ट बी ओपन माइंडेड एंड फ्लेक्सिबल. आप रिजिड नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी रिजिड. यू मस्ट बी ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबल. यू शुड अलाउ, encourage all the students to participate in the program. You should encourage the students to make mistakes also. Students may make mistakes. आपसे भी गलती हो सकता है तो बच्चों से क्यों नहीं गलती हो सकता. तो students may make mistake, but उसमें आप rigid नहीं होंगे. You have to be open minded. But one question came in like there will be one question in the like PYQ or in the book that for weak students आपका किस तरह का attitude होना चाहिए. For weak students your attitude should be like what? वीक स्टूडेंट्स के प्रति आपका कैसा होना, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, लेनियंट होना चाहिए, या नॉन, फॉर एग्जांपल कुछ और.
तो कोई अगर वीक है तो उसके प्रति आपको जो है, देखो बच्चों के प्रति एज जो है आप ओपन माइंडेड होंगे, बट हियर स्ट्रिक्ट डज नॉट मीन यू आर वेरी रूड। स्ट्रिक्ट का मतलब रूड नहीं है, स्ट्रिक्ट मीन्स उनका होमवर्क प्रॉपरली चेक। देखो वीक स्टूडेंट है तो आप जो है फिर भी उसको हंस हंस के बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करके आना, नेक्स्ट क्लास में करके आना, ऐसा करोगे तो बच्चा कभी जो है वीक स्टूडेंट वीक ही रह जाएगा। तो फॉर वीक स्टूडेंट्स, वेरी वीक स्टूडेंट जितने भी होते हैं, वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन नॉट पनिश गिविंग पनिशमेंट और वेरी रिजिड और वेरी रूड, नो। स्ट्रिक्ट मीन्स checking their homework in proper time, asking them question in the class, asking them to come prepared. So that is your like strictness. So आप उनका होमवर्क प्रॉपरली चेक करोगे, होमवर्क उनको थोड़ा देखोगे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बी लाइक इन्वॉल्व इन देयर प्रोसेस। तो उनके पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, और उसको थोड़ा देखना होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट। तो एक स्टूडेंट के केस में आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इज, ऐसा नहीं कि ओपन माइंडेड मत हो। हाँ सिंपैथी भी रहेगा, लेकिन आप जो है वहां पे स्ट्रिक्ट रहोगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट सो दैट बच्चे आपको थोड़ा सा जो है डर जो रहना चाहिए ना, थोड़ा सा वो डर रहेगा कि मैं नहीं करके आऊंगा तो टीचर जो है डेफिनेटली ये करेंगे। तो वो थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, बल फ्रेंडली अप टू सर्टेन लिमिट, दैट मीन्स लिटिल स्ट्रिक्ट। ओके यस, यू नीड टू फॉर वीक स्टूडेंट आपको क्या रहना चाहिए, आपको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए थोड़ा सा, ताकि बच्चे आपके बात को सुनेंगे मानेंगे। एंड यू मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट and love and faith for the students. Okay, yes. सर लिबरल होने से क्या होगा? लिबरल होने से they will not become they will become weak always, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वीक कौन होता है, जो होमवर्क नहीं करता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, उनको हम वीक स्टूडेंट कहते हैं। जो अच्छे से होमवर्क नहीं करके आता है, जो हमेशा फेल होता है, वो वीक स्टूडेंट है। तो उनके प्रति लिबरल एटीट्यूड रखेंगे तो इसका मतलब कि उनका गलती को हम एनकरेज कर रहे हैं। लिबरल का क्या होता है, मतलब हम एनकरेज तो नहीं, मतलब हमारे सामने कुछ नहीं है, ठीक है करके आया नहीं आया चलता है, ठीक है। लिबरल लेनियन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम रेगुलर चेकिंग करते हैं, होमवर्क रेगुलर चेकिंग मतलब हमारा एक रूटीन होता है। ये जो स्ट्रिक्टनेस है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? इन द क्लासरूम मैनेजमेंट, ये चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों स्ट्रिक्ट रहना चाहिए वो आपको समझ में आएगा। इन द क्लासेस देयर आर सम रूल्स जो जिसको फॉलो करना पड़ता है। दो हु आर फ्रॉम केवीएस एनवीएस उनको पता होगा कि स्टूडेंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, स्टूडेंट्स का एक रूल होता है जो पालन करना होता है केवीएस एनवीएस में, ठीक है। तो वो रूल्स आपको पालन नहीं करने से क्या होता है वो भी लिखा होता है वहां पे। तो somewhat you need to become strict. तो अभी हमने टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या समझ लिया। नाउ वी विल समराइज द टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द पीपल्स नीड। पीपल का मतलब यहाँ पे क्या, स्टूडेंट है। स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट्स का नीड, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स and making specific intervention also. You need to attend, you need to understand, you need to like understand their needs, experience and feelings and give specific intervention. Means intervention means what, that you need to like give your efforts, आप अपना efforts लगाओगे। intervention means आप अपना efforts लगाओगे to help them learn particular things। intervention में क्या क्या आप करोगे, you will ask question in the form of questioning, listening, you listen to their problem, you give them information, you explain the phenomena and concept, you demonstrate skill, process, testing their understanding means test करना, capacity evaluate करना, facilitating learning activity, note taking discussion, these are the things that you need to do. Okay, so simulation and practice, these are the things you need to do. Okay, understood what is teaching, what is aptitude and what is teaching aptitude? Yes or no? Yes, sir. So this is teaching aptitude. टीचिंग एप्टीट्यूड को बिंगहाम करके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला था, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए स्पेसिफिक एबिलिटी और पोटेंशियलिटी और इंटरेस्ट और सेटिस्फेक्शन एंड फिटनेस इन टीचिंग प्रोफेशन। दोज हु आर पोटेंशियली फिट, इंटरेस्टेड, they have specific ability, they are fit for teaching profession, they are called effective teachers. So that's why teaching aptitude means a ability, it is an ability or potentiality or talent or interest or satisfaction, fitness that make you best in the teaching profession. So teaching aptitude means an interest in teaching works, orientation, implementation और principles. आप जो है teaching aptitude में क्या होना चाहिए, you should have interest for doing orientation means teaching work को किस तरह से करना है, वो उसके लिए भी आप ready रहना चाहिए, as well as implement different principles, different teaching principles को आपको implement करना है and different methods को आपको implement करना है। And under the gamut of teaching aptitude,
जो टीचिंग एप्टीट्यूड अगर बहुत बड़ा टर्म है तो उसके अंदर एक छोटा टर्म है टीचिंग स्किल। सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या अगर आपके पास है तो आपके पास डेफिनेटली टीचिंग स्किल होगा, ठीक है। दैट्स वाई हम टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। टीचिंग स्किल के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? इंट्रापर्सनल स्किल चैप्टर में टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो समवन आस्क्ड सम क्वेश्चन। If a teacher has serious defects, a teacher has serious defect, if he or she has immature mental development, अगर मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं है तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। मेंटल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेच्योर मेंटल डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट इज योर नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। हम टीचिंग एप्टीट्यूड समझ गए, अब हम नेचर के बारे में समझेंगे, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। सो व्हाट आर द नेचर? एज ए टीचर व्हाट यू विल डू, व्हाट इज योर वर्क्स, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, वर्क्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। इफेक्टिव टीचर का क्या क्या काम होता है? पहला इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। वी हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। वी हैव टू Excuse me, sir. interact. Yes, Please, down. yes, ask. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Yes, you are audible. Sir, could you please scroll down the PPT for a while? Yes. Okay, thank you. Any doubt? Are you asking any doubt? No, sir. I just wanna look at the definition by Okay. income. Okay. So I will share the complete PDF after the class. Also, okay. Don't worry for the PDF. Now, next is your interaction between teacher and student. Should be what kind of interaction? Active interaction. Remember this thing. Active interaction. एक term question पूछता है, किस तरह का interaction है? Direct question है. In PYQ, this you will get this direct question. What kind of interaction must be there between teacher and students? So the interaction must be active interaction. Okay, means both should be involved in the class. Like for example, you are asking me some question, I am asking you some question. I am teaching. You are not only listening, but also you are asking your doubts. That is active interaction. Now, teaching is an art. Teaching is an art of giving knowledge and students in an effective way. कोई टीचर बहुत जो है lenient way में पढ़ाते हैं, कोई टीचर enthusiastically पढ़ाते हैं, कोई टीचर अच्छा डायग्राम ड्रॉ करके पढ़ाते हैं, अच्छा स्टोरी सुना के पढ़ाते हैं। तो टीचिंग इज एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ गिविंग knowledge to students in an effective way. Teaching is science also, because we educate fact and causes of different topics and phenomena of different subjects. So teaching art भी है, teaching science भी है, दोनों है। And teaching is also a continuing process. Teaching कभी खत्म नहीं होता। The teachers are lifelong learners. अगर खुद टीचर ही lifelong learner हैं, अगर टीचर्स ही lifelong learner हैं, तो एजुकेशन प्रोसेस भी लाइफलॉन्ग है, डायनामिक है, कभी खत्म नहीं होता। डायनामिक प्रोसेस, हम हमेशा सीखते रहते हैं। वी लर्न एवरी टाइम, ऑलवेज हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस, एंड ए टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही और सी हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। The most important thing to become a teacher is subject matter. The most important thing to become effective teacher is subject matter. इफेक्टिवली पढ़ाने के लिए सबसे पहला चीज क्या चाहिए? दैट इज सब्जेक्ट मैटर के ऊपर प्रॉपर नॉलेज आपको चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट बिकम ए टीचर, यू कैन नॉट बिकम ए इफेक्टिव टीचर। नाउ ए टीचर, एन इफेक्टिव टीचर एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए टीचर जो है क्या करते हैं? बच्चों को इनकरेज करते हैं। एंड टीचिंग जो है फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। हियर इन बुक देयर आर सम पॉइंट्स जहां से आपको डाउट जो है आता है। एक जगह पे लिखा है टीचिंग इज ऑलवेज फॉर्मल, एक जगह पे लिखा है टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो वहां पे बच्चों का डाउट होता है। देखो, जहां पे हम लोग टीचिंग को, व्हेन वी आर कंपेयरिंग टीचिंग विद एजुकेशन, देयर टीचिंग इज ओनली फॉर्मल। यार जहां पे हम एजुकेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इन दैट केस टीचिंग मीन स्कूल टीचिंग, और जहां हम स्कूल टीचिंग का बात करते हैं दैट इज फॉर्मल, ऑलवेज फॉर्मल। अगर ऑलवेज फॉर्मल लिखा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल टीचिंग। ओके, बट एजुकेशन का अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में भी फॉर्मल और एजुकेशन में भी इनफॉर्मल, एंड एजुकेशन में ऑल्सो भी नॉन फॉर्मल। एजुकेशन फॉर्मल भी है, मतलब फॉर्मल का मतलब जो आपको प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है,
आप जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, दैट इज फॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो आपको फ्रेंड्स आपको पढ़ाते हैं, फ्रेंड से जो नॉलेज मिलता है, नेचर से जो नॉलेज मिलता है, दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। फॉर्मल में टाइम लिमिट होता है, 2 साल का कोर्स 2 साल में करना पड़ेगा या 3 साल में करना पड़ेगा। टाइम लिमिट है, सर्टिफिकेट मिलता है, इसका वैलिडेशन होता है, वैलिड रहता है। ठीक है, बट इनफॉर्मल का कोई ऐसे वैलिडिटी नहीं होता है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी नहीं होता है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता, नो टाइम लिमिट। ठीक है, टाइम लिमिट नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन फॉर्मल में क्या होता है, नॉन फॉर्मल इज लाइक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कोर्स जो होता है तुम्हारा, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होता है, या फिर कोचिंग जो होता है, कोचिंग इज ऑल्सो नॉन फॉर्मल। ओके, कोचिंग इज ऑल्सो नॉन फॉर्मल। ओके, सर तो नॉन फॉर्मल में भी सर्टिफिकेट मिलता है। नहीं, नॉन फॉर्मल में कोचिंग वगैरह जो होता है दैट इज नॉन फॉर्मल होता है, जहां पे पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाहर भी अगर आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो वहां पे सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन टाइम लिमिट कुछ नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर जैसे कोर्स सर। हाँ, जहाँ पे आपको जैसे कोचिंग नॉर्मली होता है, कोचिंग और तुम्हारे मम्मी पापा जो आपको गाइड करते हैं, वो तुम्हारा नॉन फॉर्मल होता है। नॉन फॉर्मल में क्या होता है, जो फॉर्मल में क्या होता है, विथ सम ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जो पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ाते हैं। आपको जो पढ़ाया जाता है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। नॉन फॉर्मल में भी ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप यहाँ पे आरआई का प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे हमारे यहाँ से डिजिटल लर्निंग से, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। स्कूल में भी वही है कि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव दोनों जगह पे है। बट यहाँ आपको 2 साल का कोर्स है, 2 साल में नहीं कंप्लीट करो तो आपको बैक लगेगा, या जो भी होगा, एग्जाम नहीं देने जाओगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, ईयर ड्रॉप हो जाएगा, वो सब चीजें होगा। लेकिन कोचिंग 1 साल नहीं करते हो, एक दिन नहीं करते हो, या पूरा साल भर नहीं करते हो, सेकंड ईयर में फिर से ज्वाइन करते हो। नीट, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे नीट के एस्पिरेंट होते हैं, 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। तो जब जब ऑब्जेक्टिव सेम है बट कोई टाइम लिमिट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इग्नो इग्नो हमारा बहुत बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इग्नो कौन सा है अगर आपको पूछे, तो इग्नो कॉम्स अंडर फॉर्मल एजुकेशन। इग्नो आपका फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन में आता है, बिकॉज इग्नो का जो है प्रॉपर सिस्टम होता है, पूरा आपको इतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है, आपका एग्जाम देने जाना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें होता है। हाँ, ऑल दो सम फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट इग्नो इज ए फॉर्मल सेटअप। ओके, इग्नो इज ए फॉर्मल सेटअप। ओके, सो ये जो है ना, कुछ कुछ देखो, कुछ कुछ जगह पे आपको इग्नो एनआईओएस नॉन फॉर्मल भी लिखा है। तो मैं थोड़ा सा ना इसको, अगर मुझे कुछ प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाए तो मैं आपको शेयर करूंगा ये वाला चीज। ठीक है, अभी इग्नो और एनआईओएस का क्या होना चाहिए, वो मैं आपको ना बताऊंगा, एक प्रॉपर प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो हमारा स्कूल कॉलेज होता है, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, वो हमारा, जहाँ पे हम पूरा प्रॉपर टाइम टेबल अटेंडेंस वगैरह होता है, वो फॉर्मल होता है। नॉन फॉर्मल कोचिंग वगैरह और जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होता है, जो जितना साल तक भी पढ़े रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है, दोस्तों से, नेचर से, चाय वाला से। ठीक है, कोई चाय पीने के लिए गया, 5 लोग बात कर रहे हैं, वहां से कुछ सीख लिया, तो दैट इज व्हाट योर that is called as informal. Okay. Yes, Bhagya. What you could not understand, please tell. I will explain. So this is what. Anything if you are not understanding, you can definitely tell me. I will definitely explain that. So about IGNO and NIOS, I will explain again. Now next is your communication of information to students should be in an interesting way. We should make the students understand in an interesting way, proper interesting way. Our teaching must be interesting. Okay, so that the students will listen to us properly. Okay, we can make the students engaged in our classes. Agar hamara teaching is interesting, then we can make the students engaged. We can make the students attentive or active. Teaching is a tool to help the students to adjust himself or herself in the society and environment. Okay, it is a tool to help the students to adjust himself or herself in the society and environment. Because I just told you that here as a teacher we do behavioral modification of the students. हम बच्चों का behavioral modification करते हैं. We do behavioral modification of the students. That's why through behavioral modification we make them proper citizen.
so that they can adjust themselves in the society and environment. And about this, we will study more elaborated manner in this topic, emotional and social adjustment. There is a topic in RICEE syllabus on this particular point. Next, what are the qualities of an effective teacher? Teacher must identify weak student. Teacher must identify strong student, gifted student. Teacher must live with the students mentally. We have to live with the students mentally, means we have to empathy कहते हैं. So this is called empathy. We need to understand what the students is what is going on students mind. In students mind, what is going on, we should understand that. Okay. सर चाइल्ड साइकोलॉजी भी आएगा ना सर? Yes, child psychology must be there. We should understand what the students are thinking. Okay. Scroll or speed up? Scroll. Okay. Okay. So next is your teacher must lead the students with the students mentally. Means we have to understand what they are thinking. Teacher must identify the knowledge of the students and build the students on what they have. Means we have to guide them according to their foundational knowledge. According to their foundational knowledge. Means we have to give them example on what they know. Means we have to connect their previous knowledge with new knowledge. We have to connect their previous knowledge with new knowledge. If the students have idea about one thing, then we have to elaborate that only first. Then we can explain new topic so that the students can relate what the teacher is teaching. So हमको उनका previous knowledge के हिसाब से new knowledge देना चाहिए. जो भी foundation है उसके हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए. So the teacher must identify knowledge of the students and guide them according to their knowledge. What they know, we need to guide them from that. If we are teaching some new topic, then we have to teach what they understand. पहले जो उनको पता है, we have to make them understand first. Then we teach new topic. So that is called connecting previous knowledge with the new knowledge. Now teacher must keep his or her own shoulder to students for nurturing such that students can grow mentally and physically. Means this is called friendly relationship. We must be friendly with the students. We must be friendly with the students. But the friendly should be up to a certain limit. Up to a certain limit inside the classroom. Okay. Yes. Up to this is called known to unknown. यहाँ पे जो हम previous knowledge से new knowledge के बाद हम कर रहे हैं, this is called known to unknown. पहले उनको known चीज बताएंगे. We will elaborate what they know. Then we will explain new topic. Okay. So that is called known to unknown. We will study about this also later. Now next is your teacher must be humorous inside the classroom. Means you must put some humor also. Means joke or like funny environment also, so that the students must be attentive or engaging with your class. So he must be humorous also in the classroom, as well as he must have capability to control the class. आप बीच बीच में मजाक भी करो, बट क्लास को कंट्रोल भी करना चाहिए. मौज मस्ती होना चाहिए, बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करो, बट यू मस्ट बी एबल टू कंट्रोल द क्लास. ऐसा नहीं कि हंसी मजाक के चक्कर में यू कंट्रोल से बाहर चला जाए. नो, you must control also, must have ability to control the class. So about this, again, I told that we will study in this particular topic, leadership quality and group management. Okay, now a good teacher must have in-depth knowledge of subject, must have love for the students, teachers are called backbone of the society. These are we have already studied. Okay, yes, and teachers have different roles. They have several roles. Okay, as a teacher, we have a lot of role in the society. Okay, to make our society stronger. Now, the way a teacher can lead the students is varied from teacher to teacher. I can lead, for example, in a different way, or another teacher can lead in a different way. So this leadership quality varies from teacher to teacher. Group management varies from teacher to teacher. Okay, ability to control the class varies from teacher to teacher. Now, teacher must have these particular 3 qualities. Yes. सर बुक भी पढ़ना पड़ेगा कि सर पीपीटी एनफ है? बुक पढ़ोगे तो बेटर होगा. आई सजेस्ट कि अगर आप पीपीटी तो मतलब इफ यू हैव वेरी लेस टाइम टू स्टडी देन पीपीटी आपको पढ़ना है. बट इफ यू वांट कंप्लीट नॉलेज देन आई सजेस्ट कि आप बुक को पढ़ो. ठीक है. अदरवाइज पीपीटी इज आल्सो एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड. PPTs are enough in the that I will provide in the classes. But if you want complete knowledge, then I suggest you to study the book, because book has detailed information. Okay, so teacher must have
in-depth knowledge about the subject. Teacher must have good knowledge not only about the subject but also about the methods. Pedagogical skill means method. You must have knowledge about the subject content. You must have knowledge about the teaching methods, and you must have knowledge about the learner preparedness, means child psychology. You must have knowledge about the three things: knowledge about subject matter, knowledge about teaching method, and knowledge about the child psychology. Okay, so these three things you need to know. Next, factors affecting teaching. Yes. Sir, if a teacher has a weak personality, then he is a good teacher or a bad teacher, sir? Not good teacher. If you have a weak personality, then ये good bad का बात नहीं है, effective or not effective. So if a teacher is weak, has weak personality, then that teacher will not be an effective teacher, because in this particular topic we will study more about that. That is interpersonal skill. Teacher must have good interpersonal skill. Means communication, personality must be good personality. And I also told you one thing, that teacher must maintain proper professionalism. So a teacher must have strong personality so that the students will value you. Students will give you importance. Students will listen from you. Teacher must have strong personality, because teachers are the mirror of the society. Okay. Yeah. So three variables of teacher, students, and environment I already told you. Then teacher-student relationship, I told you that this relationship must be like father-like relationship. What is father-like? Father or mother-like? That is called friendly, but up to a certain limit. Friendly up to a certain limit. Friendly up to a certain limit. Next is method of teaching. You must have knowledge about the teaching methods. There are different kinds of method: discussion method, demonstration method, problem solving method, inductive method, deductive method, project method. A lot of methods are there. So you must have knowledge about that. Then teacher and administration relationship is also very important. A teacher must have positive relationship with the administration also. He must have good relationship with the principal also, okay, and other academic staff, so that you will not feel the teaching work as a burden. Okay? If you are not having good relationship with the administration, you may feel some work as a burden, because administration will give you a lot of works apart from teaching. So if you do not have a positive relationship with them, then you may find it as a burden. So must be positive relationship. Then the social environment. Social environment also affect teachers. Okay. Now the social environment is also very important. Social environment is also very important. As a teacher, you must be able to adjust yourself in the society. And there is a particular topic here: emotional and social adjustment. In this particular topic, I will elaborate this particular thing more. Okay. So social environment is very, very important. Like I told you that community, if your community is not supporting you, for example, if you have seen the Phule movie, आपको समझ में आएगा, ज्योतिबा फुले. Okay, there is a movie just released. Movie name is Phule. Okay, if you will have time, I suggest you to watch this movie, Phule. Okay, this is a very good movie. I suggest all of you to watch in your free time. So here in this particular movie, Phule, फूले में क्या होता है कि उनको जो सपोर्ट नहीं करते हैं कम्युनिटी, उनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दे सफर लॉट, बट दे बिकम एग्जाम्पल लेटर. सो आपका कम्युनिटी का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए टीचर. बाद में उनको पूरा उनका कम्युनिटी सपोर्ट करता है तो वो बहुत अच्छा रिवोल्यूशन ला सकते हैं, ला पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज योर रोल ऑफ ए ग्रेट टीचर. टीचर हैज ए लॉट ऑफ रोल्स. टीचर हैज ए लॉट ऑफ रोल्स. ओके. Okay, so teacher, what kind of roles teacher have? Teacher are called a resource provider. Means as a teacher, for example, you are a class teacher. For example, you are a class teacher. So you'll have a lot of resource about your students. Student details. अगर आप जब टीचर बनोगे आपको पता चलेगा कि बच्चों का डिटेल्स, मतलब पेरेंट्स के पास भी उतना डिटेल्स नहीं होगा जितना डिटेल्स आपके पास होगा. ठीक है. एज ए टीचर यू हैव like students name, students mobile number, students parents mobile number, students Aadhaar number, students APAR ID, students address, parents profession, everything you need to know. You have a lot of things. The students portfolio are there. You guys portal, a lot of portals are there in which everything has been updated. So as a class teacher, you need to keep all those information. Okay. So teacher have knowledge about the students. Teacher have knowledge about the school also. Okay.
For example, a new teacher is going to join the school, then the teacher can guide the new teacher because he has a lot of resources. Okay, so teacher are resource provider. For the to the students also, they provide a lot of resources. For example, as a teacher, I am providing you, for example, this PPT. I am providing you this PPT so that you will study from this PPT. Or I have provided you the book so that you can study from this book. So teachers are resource provider. Teachers can give you notes, questions, question banks. So teachers are resource provider. Next is teachers are instructional specialist. Teacher will give you proper instruction that you need to follow this, follow that. This book is good. This book is not good. You need to do your homework in this time. You need to do in homework like in this particular way. You need to solve this problem in this particular way. You need to come prepared. So everything teacher gives different kinds of instruction to the students. So teachers are instructional specialists. They have a lot of instruction. Then teachers are curriculum specialists because teachers are teaching to the students. They have idea about the school curriculum. They can make good curriculum also. They can suggest good curriculum. जब भी curriculum बनाया जाता है एनसीए नेशनल curriculum framework जब बनाया गया था बहुत सारे टीचर्स से फीडबैक लिया गया था because teachers are also curriculum specialists as they are teaching directly to the students so that's why they have idea that what is good or what is not good, what is suitable, what is not suitable. So that's why teachers are called curriculum specialists also. Which material is good, which material is not good. Teachers have the idea. They are curriculum specialists. They are classroom supporter because they support in the classroom. Teachers students को support करते हैं classroom में. In different kinds of doubt solving, personality growth, everything. Teachers are learning facilitator. They make the students learning easy. Learning facilitator means they make the students learning easy. Their mentor means they can guide in anything. Their mentor. They may be school leader also. Okay, some like for example, principals are school leader, head of the department may be the school leader. So they also act like a school leaders. Teacher may be school leader. They lead the school or like principal lead the school. Okay, so teachers are school leader. Teachers are data coach. जो मैंने यहाँ पे आपको बताया स्टूडेंट डिटेल होता है स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन होता है. So teachers are data coach also. They have a lot of data about the students, about the school. They can give data to their new teacher or new student, for example. And teachers are catalyst for change. Good teachers are catalyst for change. Means they can change the society. They can change their school. If something good is coming, they will adopt that. अगर कुछ अच्छा चेंज आ रहा है तो वो अडॉप्ट करेंगे and they will become trailblazer. They will be first adopter, early adopter. And जो अच्छा चेंज है उसको अडॉप्ट करके स्कूल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. They are catalyst for change. ठीक है. Then they are lifelong learner. Learner for lifelong. They learn till their death. For example, if you become a teacher, at least to 60 or 65 years, you will become a teacher. After that also, you can learn a lot of things. So teachers are lifelong learner. Okay. Now, what are the different duties of an effective teacher? So teachers prepare students with new topic. Teachers present the learning activity. Teachers ask questions to the students. Teacher monitor the students. Teacher give feedback to the students. Teacher review their student. Identify weak student. Identify strong student. Reteach the already taught topic or remedial classes. If required, we will give remedial classes as well as we reteach the topic if the students are not understanding. Okay, taking remedial classes, preparing student note, preparing question bank. So these are the qualities of or duties, not quality. These are the duties of teacher. Task of an effective teacher. So these are the tasks or duties. Okay. अच्छा कुछ डाउट पूछ रहे हो क्या? How much on what basis would you give marks while evaluating the answer booklet of student? Okay. On what basis would you give marks? किस basis पे marks दोगे? How much long answer has been written by the student? What is the quality of answer of the student from viewpoint of subject matter and style? How much beautiful the handwriting? All of this. Definitely B will be there. The quality is most important. If you are evaluating, then you will evaluate the quality and viewpoint of the student, not the beautiful handwriting or not the long answer. पेज भरने से नहीं होगा या अच्छे से लिखने से नहीं होगा. The viewpoint is most important. So answer B will be the answer. Okay. और कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? To whom the responsibility of organization of curricular activity should be stored in? Organization. Okay. Responsibility of organization. The teacher who is appointed for this work. Okay. Should be the responsibility. ठीक है. Organize करने का काम किनका होता है? वो teacher. Okay. Principals are the supervisor. Organize कौन करते हैं? Teachers organize the activity. So teachers who are appointed with this work will be responsible for the organization. ठीक है.
different committees are developed in a school. Bad handwriting भी है तो you will try to study. Okay, handwriting is not important. आप handwriting के हिसाब से marks नहीं देते हैं, ठीक है? आप जो है आंसर किस हिसाब से देते हैं? आंसर व्यू पॉइंट से लिख के देते हैं, ठीक है? ऑल टीचर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, ओनली द टीचर्स हु इज अपॉइंटेड. जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में 50 टीचर हैं, देन ऑल द 50 टीचर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क करिकुलर एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन करिकुलर एक्टिविटी. Only those who are appointed by the principal or by the organization, those who are responsible. आप सबको responsible बनाओगे तो क्वेश्चन किससे पूछोगे? You're understanding or not? Yes or no? Yes, sir. So for example, let me tell you one thing, that in parliament there are, for example, 550 members. Okay, in the Lok Sabha, for example, in the Lok Sabha 550 MPs are there, for example. Okay, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 545 है, 550 में लिख रहा हूँ. तो 550 फॉर एग्जांपल आपके एमपी हैं, सब लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑल आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एरिया. बट अगर कुछ भी नेशनल पॉइंट पे कुछ भी होता है, देन क्या आप सारे एमपी से सवाल पूछोगे या कंसर्न मिनिस्टर से सवाल पूछोगे? बताओ. सर कंसर्न Minister. मिनिस्टर. यस, अगर आप लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो जो क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर्स में मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज सारे 550 लोगों से आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ठीक है? यू आस्क द पर्टिकुलर पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, ठीक है? सो दैट्स व्हाई लाइक दिस इज द थिंग. सो देखो, अगर जब आप जो आपके स्कूल में फॉर एग्जांपल ऑल बिलोंग टू सम स्कूल, तो आपके स्कूल में डिफरेंट कमिटीज में भी देयर, सम टीचर में भी रेस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली होता है, कुछ टीचर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. सम टीचर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एसे कॉम्पिटिशन और डिबेट कॉम्पिटिशन. सारे टीचर ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कि सारे टीचर आपका जो है डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे, या फिर सारे टीचर क्वेश्चन बैंक नहीं बनाएंगे, ठीक है? क्लियर? जो भी अपॉइंटेड उसके लिए होते हैं वही वो काम करते हैं. क्लियर? सो दैट्स व्हाई दोज हु आर अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क will become the organizer of the curricular activity. Okay. Next, in short, the task of a good teacher are outlined. What are the tasks of a good teacher? So the teacher to bring desired changes. The task is to bring desired changes in the learner behavior. That is also called behavioral modification. See, some terminology I am repeating again and again. So behavioral modification. टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है. टीचिंग से भी इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन. हम खाली बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते, तो चेंज द बिहेवियर इन ए प्रॉपर और यूजफुल फॉर द सोसाइटी, बिकॉज वी मेक देम इफेक्टिव सिटीजन ऑफ द सोसाइटी. हम बच्चों को सिर्फ अच्छा नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, वी टीच देम टू बिकम इफेक्टिव सिटीजन्स. इफेक्टिव सिटीजन्स. टू टीचर्स का टास्क होता है टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स माइंड, behavioral modification, to give students sufficient knowledge about the subject, to enhance their skill, to motivate the students to participate in social activities, to motivate the students to ask any doubt in your mind, to motivate the students that they should not fear from the teacher, and they should be active. Interactive means they should be actively participate with the students, and they must be friendly with the students up to a certain limit. All these things we have already discussed. Most important thing is that behavioral modification. अगर ये सब ऑप्शन में देता है ABCD करके, then you have to choose this one. Behavioral modification is the most important. अगर आपको टास्क देता है which is the most important task of a teacher करके, A में आपको ये देता है behavioral modification, B में आपको फॉर एग्जांपल नॉलेज देता है, C में एक्टिविटी, और D में ये सब देता है. तो you have to choose behavioral modification because एक प्रॉपर ऑर्डर में दिया गया है. Behavioral modification is the most important thing, because कोई अच्छा पढ़ाई कर लेता है तो ऐसा नहीं कि वो अच्छा इंसान बनेगा. There is a movie called Dhruva. Yes or no? या फिर सिंपल रामायण भी अगर आपने देखा है तो जो रावण होता है, रावण बहुत बहुत नॉलेजेस इंसान है, बहुत मतलब पंडित है, बहुत सारी चीज में उसको बहुत नॉलेज है, लेकिन गलत काम करता है. ये सुनो, तो उसका विनाश होता है. क्लियर? तो इसीलिए बिहेवियर अच्छा होना, सोसाइटी में अच्छा इंसान होना जरूरी है. जो ध्रुवा मूवी है, ध्रुवा मूवी में एक होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है, और एक होता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है, बहुत सारा उसको प्राइज वगैरह मिला होता है, बट वो अंदर के अंदर बहुत गलत काम कर रहा होता है, इसका भी विनाश होता है. तो आपका बिहेवियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यस. सो कैरेक्टर ऑफ ए ग्रेट और गुड टीचर. सो it is an accepted fact that
teachers are usually born, not made. Sorry, this particular, it is accepted, but it is not true. It is not true. Teachers are made, not born. टीचर्स आर मेड नॉट बर्न, मतलब आप पैदा होते ही अच्छा टीचर नहीं होते हो. यू कैन डू बिकम ए गुड टीचर थ्रू प्रैक्टिस. टीचर्स आर मेड नॉट बर्न. टीचर्स आर मेड नॉट बर्न. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. टीचर्स आर मेड नॉट बर्न. सो ए ग्रेट टीचर respect the students. A great teacher create a sense of community and belonging in the classroom. A great teacher set high expectation for all the students. A great teacher has his own love for learning. A great teacher is a skilled leader. A great teacher can shift gears. A great teacher can collaborate with colleagues on ongoing basis. And a great teacher maintain professionalism. Whatever we have read, it is repeatedly giving. I am giving repeated information to you so that you can remember this thing. A great teacher should respect, love and faith for the students. Affection for the students means respect the students. A great teacher should create a sense of community and belongingness in the classroom means friendly relationship. The teacher should develop rapport with the student. rapport building करना है, मतलब आपको वो बच्चे मानने चाहिए, रेस्पेक्ट करने चाहिए. टीचर को हमेशा, जैसे बच्चे मुझे पूछते हैं सर 1 महीना है सर, कैन आई क्रैक दिस एग्जाम? आई विल डेफिनेटली से यस, बिकॉज आई हैव टू सेट हाई एक्सपेक्टेशन from you. I have high expectation from you. So I will definitely tell you can do if you're working like hard, you will definitely get a seat. So teacher has set high expectation from all students. Teacher must have own love for learning. मुझे पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए. ठीक है. Teacher must be a skilled leader. Leadership बहुत अच्छे से कर पाना चाहिए. Teacher can shift gear means gear shifting. जैसे कभी slow जाना है और कब fast जाना है, ये उनको पता होना चाहिए. जब if the students are understanding the topic easily because this topic is very easy, then at that time हमको fast जाना होगा. ठीक है, easy topic है, बच्चे समझ रहे हैं, तो मैं fast पढ़ाऊंगा. किस मेथड यूज करूंगा? I will use lecture method and teach the topic fast. But if the students are not understanding, it is a difficult topic or very difficult topic, and I have to explain them properly. So I need to use discussion method. और अगर very difficult है, तो I need to use demonstration method. So I need to change my method. मैं fast या slow, I need to decide when I should be fast and when I should be slow. So teachers can shift gear. Then teacher can collaborate with the colleague. This is called team teaching. टीम टीचिंग भी करना होता है. अगर मैं सिर्फ मैथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो नहीं होगा. ठीक है, मैथ में खाली स्ट्रॉन्ग करने से नहीं होगा. आई नीड डिफरेंट टीचर्स ऑल्सो. मैं अगर खाली आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन RICAA एग्जाम, ठीक है, इन RICAA एग्जाम 3 टॉपिक्स आर देयर, 3 सब्जेक्ट्स आर देयर. आई एम एक्सपर्ट इन टीचिंग एप्टीट्यूड. मैं आपको खाली टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप पढ़ लो यहीं से कहीं से पढ़ लो. आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इंग्लिश एंड रीजनिंग. देन मैं आपको इफेक्टिव गाइडेंस नहीं दे पा रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू ऑलराउंड गाइडेंस. if I need to give you all round guidance, then I need to be like use this method called team teaching. मुझे बाकी टीचर्स के साथ मिल के आपको पढ़ाना पड़ेगा so that आपका रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है. So this is teachers should collaborate with the colleague on ongoing basis. Okay. Now maintain professionalism in all area. You have to maintain your professionalism as a teacher. There are some code of conduct, there are some rules, there are some professionalism. You have to maintain that because you are the mirror of the society. You are at the top position of the society, so you have to maintain that professionalism. ठीक है, टीचर्स का बात को जो है सब लोग मानते हैं, तो you have to maintain that professionalism. क्लियर है? ये सर रिपोर्ट बिल्डिंग क्या होता है? Yes, sir. रैपोर्ट sir. का मतलब होता है लाइक एक रेस्पेक्ट होता है बच्चों के. तो मैं जो बोलूंगा आप मेरा बात मानते हो, दैट इज कॉल्ड रैपोर्ट, रैपो बिल्डिंग. ठीक है, रैपो बिल्डिंग उसको कहते हैं. मैं जो बोलता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना आजकल कोई टीचर को फॉर एग्जांपल कहीं से निकाल रहे हैं, पूरा सारे स्टूडेंट आके खड़े हो जाएंगे, नहीं ये टीचर नहीं जाना चाहिए यहाँ से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रैपो. ये सुन ना, जैसे बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कोई टीचर का ट्रांसफर हो रहा है, सारे बच्चे आके उनको पूरा रोने लगते हैं, उनको जाने नहीं देते हैं. दैट इज रैपो बिल्डिंग. बट टीचर्स को इतना प्यार करना है. यस यस. एनी अदर डाउट? Sir, 6 number. Skilled leader means proper skills should be there to lead the like team, lead the students. बच्चों को लीड कर पाना चाहिए. अगर आपके बात कोई नहीं मान रहा means you are not a skilled leader. A skilled leader definitely lead the students properly. पूरा अपने बच्चों को अच्छे से लीड कर पाना चाहिए. But lead in Sir, along with, not. Years 1.
और शिफ्ट गियर, यस शिफ्ट गियर मीन्स जैसे आपके बाइक या व्हीकल में या फिर कार में क्या होता है, गियर होता है, जहाँ पे आपको पॉटहोल्स है या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा स्लो करना पड़ता है, बट जहाँ पे लोग नहीं है, रास्ता पूरा खाली, आपको स्पीड जाना पड़ता है, तो गियर चेंज करते हैं। ठीक है, गियर चेंज करते हैं बाइक में या कार में। सिमिलरली लेसन में भी गियर होता है। ठीक है, टीचर्स के पास भी लेसन में पढ़ाते टाइम गियर होता है। मीन्स जब लेसन बहुत इजी है वी कैन टीच फास्ट यूजिंग लेक्चर मेथड, बट लेसन डिफिकल्ट है तो आई नीड टू एक्सप्लेन, आई नीड टू गिव मोर टाइम टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक, सो आई नीड टू एक्सप्लेन स्लो, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग द गियर। क्लियर? जब जरूरत पड़े Yes. स्लो पढ़ाना और जब जरूरत पड़े फास्ट पढ़ाना, दिस कॉल्ड शिफ्टिंग द गियर। ठीक है? Sir, I have a doubt. यस। नाउ सी, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है, तो आज अभी जितना डाउट है आप डाउट पूछो मुझे। ठीक है, क्लास इज ओवर, दोज हु वांट टू लीव द क्लास दे कैन लीव, अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द डाउट। ओके, 10-15 minutes I will take your doubts. Yes. Sir, the doubt is Hmm. which pair should have very close rapport in school system? Hmm. Sir, option A, child and teacher, child and parent. Sir, which one? दो ऑप्शन आपने बताया, चाइल्ड एंड टीचर। एक बार क्वेश्चन फिर से बताओ। Sir, which pair should have a very close rapport in school system? डेफिनेटली टीचर एंड चिल्ड्रन। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच में रैपो होना चाहिए। ठीक है, दिस वन Okay, sir. दैट वी Sir, आर स्टडीइंग। हाँ, यस। which characteristics of a child should a teacher encourage most for his intellectual development? Curiosity, kindness, honesty, and hard work. टीचर, क्वेश्चन एक बार रिपीट करो। Sir, क्या? क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करो। Which characteristics of a child should a teacher encourage most Okay. for his intellectual development? ओके, क्यूरियोसिटी, काइंडनेस, हार्ड वर्क एंड Honesty. ऑनेस्टी। यस, टेल। सब लोग बताएंगे, स्टूडेंट्स विल टेल। So honesty. Curiosity. Kindness. Curiosity. Sir, can you repeat the question once again? Which characteristics a teacher should encourage? A teacher should encourage for intellectual development of children. एक बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, Curiosity. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। Curiosity. यस, सब लोग बताएंगे। यू कैन जस्ट टाइप ऑल्सो। Curiosity. All can type in the chat box. Okay, good. So answers will be curiosity. A curious person will be definitely intellectual. Curiosity आपका अगर बढ़ता है तो आप एक अच्छा intellectual development आपका हो सकता है। And in this class also मैंने ये term आपको बताया था। Curiosity is very important term. If a children is curious, then you will search the different things to become aware of different things. तो वो awareness चाहता है। Curiosity जब होता है तो बहुत सारी चीज पढ़ने की कोशिश करता है, and definitely intellectual development will be there. Clear? So intellectual development means to, like, it refers to the growth of child's ability to think, reason and solve the problem. Intellectual ability का मतलब क्या होता है? Thinking, reasoning, solving the problem and understand different real world situation. तो ये सब के लिए आपको क्या होना चाहिए? Curious होना चाहिए. A curious person will definitely become intellectual. Okay. तो कुछ कीवर्ड्स में बता देता हूँ। एक होता है आपका क्यूरियोसिटी, एक कीवर्ड है, बहुत बार क्वेश्चन में ये वर्ड से क्वेश्चन पूछता है। एक और कीवर्ड है क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी। तीसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब कुछ कीवर्ड है जहां से आपको रिपीटेडली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया है सब चीजें। ठीक है, एनी अदर डाउट? समवन आस्क्ड डाउट ना? क्वेश्चन था। यस, एक क्वेश्चन में स्मृति प्रज्ञा का क्या डाउट एक बार बता देते हैं। Which students would you consider be problem student? Problem कौन है? The one who asks too many questions during the class, one who do not pay attention,
remains aloof from the students in class and lost in himself and in case increase discipline in the class. Yes, problem कौन कर रहा है? जो discipline कर रहा है, indiscipline. वो immediate problem create कर रहा है. तो indiscipline will be the first problem student. बाकी सबको तो आप उनके साथ बात कर सकते हो. If a student is not focusing, aloof मतलब पूरा जो है डिस्कनेक्टेड रह जाना, कोई अटेंशन ना देना और बहुत सारा क्वेश्चन पूछना तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. हाँ, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट आंसर ढूंढने के लिए आप मोटिवेट करते हो, बट जो इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इनडिसिप्लिन, ही विल बी ए प्रॉब्लम स्टूडेंट. यस शिवम बोलो. सर एक Yes, क्वेश्चन था today's कि paper will apply. Available. Yes. which is the most important factor affecting the development of a student's personality? Hmm. ऑप्शन था Yes. सर ये इमोशनल क्लाइमेट एट होम या फिर सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स. Emotional context at home or social. ओरिएंटेशन ऑफ Yes. पीयर्स एंड एल्डर्स. Okay. और कोई क्या ऑप्शन है बताओ. और है डिसिप्लिन इन द स्कूल और इनहेरिटेड क्वालिटीज ऑफ एंसेस्टर. तो सर Okay. मुझे ऑप्शन 2 ये इमोशनल क्लाइमेट एट होम लग रहा था. देखो, पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है? इनहेरिटेड तो नहीं होगा, ठीक है. क्या डिसिप्लिन से भी Yes. पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होता है? पर्सनैलिटी दो चीज से डेवलप होता है. देखो, इमोशनल क्लाइमेट एट होम और Home. सोसाइटल क्या है? सोशल सोशल Relationship. ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स. एल्डर्स. तो पर्सनैलिटी हम ज्यादातर जो है तुम्हारा इससे होता है, सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स. आप अपने एल्डर्स और पीयर्स से देख के सीखते हो, आपके रोल मॉडल बनाते हो, ठीक है. तो पर्सनैलिटी उनके साथ आप जो है मेंटेन करते हो. इमोशनल क्लाइमेट एट होम मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर व्हाट, लाइक योर बैकग्राउंड नॉलेज और योर मेंटल स्टेटस. आपका मेंटल स्टेटस, स्टेट ऑफ माइंड को इम्पैक्ट करता है इमोशनल क्लाइमेट एट होम. बट योर सोसाइटल, जो सोसाइटी में जो आप रिलेशनशिप होता है, सोशल ओरिएंटेशन मतलब उनके साथ किस तरह से आप व्यवहार करते हो, किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से बातचीत करते हो, दैट लाइक डिपेंड्स इफेक्ट द पर्सनैलिटी. क्लियर? सर सर मुझे लगा So- कि ये इमोशनल क्लाइमेट एट होम इसलिए होगा क्योंकि बच्चा जो है वो ज्यादा टाइम तो घर में ही रहता है, तो उस हिसाब But से उस घर में क्या देखते हो? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू अंडरस्टैंड ना? पर्सनैलिटी मींस हम कुछ किसी को देख रहे हैं और उसके तरह बनना चाहते हैं. तो इमोशनल इज डिफरेंट कंटेक्स्ट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होता है? जब आप किसी, जैसे टीचर को फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो तो आप चाहते हो कि टीचर की तरह बनना है, ठीक है. आप किसी आईएएस ऑफिसर को देखते हो तो उनकी तरह बनना चाहते हो. दैट इज पर्सनैलिटी. पर्सन इन्वॉल्व, अगर पर्सन इन्वॉल्व है दैट इज पर्सनैलिटी. तो बिकॉम ए पर्सन, लाइक टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, योर सोशल इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स अंडर विच स्किल? इंट्रा या इंटर? बताओ, पर्सनैलिटी किस में आता है? इंटरपर्सनल स्किल. दैट इज ए रिलेशनशिप, ठीक है. सोसाइटी, इसीलिए यहाँ पे सोशल. देखो आपके पास, मैं आपको लॉजिकल आंसर बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको. सोशल ओरिएंटेशन मीन्स व्हाट? इंटरपर्सनल. और हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे डिटेल में, इंटरपर्सनल स्किल में आता है, ठीक है. यस सर. Today's class will be available, don't worry. Change in attitude pertains to what? Change in attitude pertains to cognitive development, psychomotor, affective. एटीट्यूड जो होता है तुम्हारा दिमाग से रिलेटेड होता है, ठीक है. तो कॉग्निटिव डोमेन में तो होगा, ठीक है. आप जो एटीट्यूड जो लाते हो, दैट्स कम्स ऑफ सम बिहेवियर. सो उसकी वजह से आपका इफेक्टिव डोमेन में भी चेंजेस आता है, ठीक है. तो चेंज इन एटीट्यूड आपका इफेक्टिव मतलब बिहेवियर. एटीट्यूड मतलब क्या है? बिहेवियर दिखाओगे लोगों को, और एटीट्यूड को हम छुपा भी सकते हैं, मेंटली ये कर सकते हैं. तो कॉग्निटिव इफेक्टिव डोमेन दोनों को अफेक्ट करता है एटीट्यूड. सो व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम जो है इसमें फिर से पढ़ेंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, जो फर्स्ट चैप्टर में होगा, ठीक है. सो एटीट्यूड पे अवेलेबल होगा व्हाट? सर बुक्स टीचिंग एप्टीट्यूड का. बुक्स, हाँ देखो, अगर आपने इंग्लिश और रीजनिंग का बुक नहीं खरीदा है, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव द टीचिंग एप्टीट्यूड बुक वेयर यू कैन ऑर्डर. जस्ट गो टू डीसीएस लर्निंग वेबसाइट, बुक में जाओ, बुक्स के सेक्शन में जाओ, ठीक है. इन बुक के सेक्शन में जाके यहाँ पे नीचे देखो टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है, अवेलेबल है. टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश अवेलेबल है, रीजनिंग अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. तो एटलीस्ट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बुक जो है ऑर्डर करना चाहिए, बिकॉज ये सब चीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे गूगल में या कहीं पे प्रॉपरली नहीं मिलेगा. सम अदर एजुकेटर्स आर आल्सो टीचिंग, बट दे आर टीचिंग यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट.
आपको अलग अलग जो एजुकेटर जो आरए के बारे में पढ़ा रहे हैं वो कहीं यूजीसी नेट के सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, कहीं और से पढ़ा रहे हैं, तो आपको कंसाइज जो है इसी बुक में मिलेगा चैप्टर वाइज, एंड दोज हु हैव द बुक दे मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट कि किस तरह से बुक बनाया गया है। ठीक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई कैन एश्योर यू in this book you will get enough information or complete knowledge. If you are following this book particularly, I can definitely tell you that it will help you to get more than 20-25 marks, 20-25 question corrected in this book itself. अगर आप क्लास को मिला देते हो 30 से 30 क्वेश्चन आपके जो है डोमेन में आ जाएंगे, आपके एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, एनी अदर डाउट? यस सर सर। बेसिक एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? हाँ देखो, ये जो जनरल अवेयरनेस है ना, जनरल अवेयरनेस में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक होता है बेसिक एजुकेशन, वो जिसको दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, जो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक नई तालीम इसको बोलते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होता है। ठीक है, इंसान को जितना जरूरत उतना पढ़ना, उतना काम करना चाहिए, उसको बेसिक एजुकेशन कंसेप्ट कहते हैं। अपने लिए टू डू वर्क फॉर योरसेल्फ, जैसे चरखा चलाना, अपने लिए कपड़ा बनाना, नई तालीम के अंदर आता है, महात्मा गांधी का कंसेप्ट है। एक है इंटीग्रल एजुकेशन का कंसेप्ट है, जो श्री अरविंदो का कंसेप्ट है। पूरा एक बच्चा इंटीग्रल मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट किसी बच्चे का होना चाहिए, ये श्री अरविंदो का कंसेप्ट है। इस तरह से बहुत सारा है, मैं बता दूंगा आपको एक ये वाला क्लास में, जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, टीचिंग का ओके सर। टोन, टीचर का टोन कैसा होना चाहिए? टीचर्स टोन शुड बी व्हाट, समटाइम हाई समटाइम लो, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। Teacher's tone should be voice modulated, means that is called humor. Sometimes you need to use proper humor बोलते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कि एक टोन पे मत बोलो। If you are speaking on one particular tone, it may be boring. कभी कभी आप थोड़ा स्लो, कभी ज्यादा जब हम बोलते हैं तो बच्चा थोड़ा इसको बोलते हैं ड्रामेटिक वे में बोलना। जैसे ड्रामा वगैरह देखते हो आप लोग, ड्रामा में कैसा कभी कम वॉइस में कभी ज्यादा वॉइस में आता है तो बच्चे पूरा अलर्ट हो जाते हैं। तो लाइक दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी टॉट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, सॉरी, ये जो है ये इंट्रापर्सनल स्किल करके एक चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। इंट्रापर्सनल आपको वॉइस मॉड्यूलेट करता है, तो क्वेश्चन आता है, ऑप्शन वहां पे रहता है समटाइम हाई समटाइम लो। कब हाई, कभी कभी हाई बोलना है, कभी कभी लो बोलना है, दैट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, Sir, I have a question. यस यस, आस्क। Which of the following is not a characteristic of a good teacher? यस, ऑप्शन Option है knowledgeable, strict, innovative, and enthusiastic. नॉट ए गुड कैरेक्टरिस्टिक्स। Yes, sir. नॉलेजेबल बोला, और क्या बोला? Strict, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, innovative. स्ट्रिक्ट। दिस इज आंसर। नॉलेज होना Sir, चाहिए, लेकिन आपने इनोवेशन बताया होना था चाहिए। ना लेकिन आपने तो बताया था ना कि जैसे अगर कोई बच्चा वीक है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट मतलब इस हाँ, सेंस में नहीं कि आप उसको मारपीट डांट रहे हो, बल्कि इसके लिए कि आप उसे कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये सब। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होगा बताओ? ठीक है, मैं स्ट्रिक्ट को हटा देता हूँ, आप बताओ क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट तो स्ट्रिक्ट ही है, लेकिन आपने डेफिनेशन उसका दिया था ना। नहीं, आप बताओ ना, मोस्ट छोड़ दो, स्ट्रिक्ट को छोड़ दो, क्या होगा बताओ? यस टेल, आपके हिसाब से क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट है बताओ? ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट लिसन, ओके? यस टेल, आपके हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, और विच शुड बी सिलेक्टेड? आप अगर एग्जाम देने जाते हो कल, तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? स्ट्रिक्ट ही होगा तब। नहीं, ठीक है, स्ट्रिक्ट को छोड़ दो, आप क्या सिलेक्ट करोगे बताओ? क्या अगर नहीं वो होना स्ट्रिक्ट चाहिए? अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो नहीं, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन है, आप क्या सिलेक्ट करोगे? तो ये सारा तो अप्रोप्रिएट ही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है इन विच क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं और जो ऑप्शंस रहते हैं उसमें से आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा। इट्स ऑप्शन डिपेंडेंट। जो तुम्हारे टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस। आप ऑब्सेस्ड नहीं रहना है कि सर आपने स्ट्रिक्ट बताया तो हमेशा स्ट्रिक्ट ही रहना है। नो,
कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, वहां पे लिखा है स्पेसिफिकली कि फॉर वीक स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, बट ऐसा नहीं बोला है कि ये जो है गुड क्वालिटी है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि स्ट्रिक्ट रहना गुड क्वालिटी है। अरे दे आर वीक स्टूडेंट, उनके केस में आपके पास नो अदर ऑप्शन, यू कैन नॉट बी lenient लिबरल, ठीक है। So उनके केस में you need to become little strict so that they do the things, but इसका मतलब नहीं कि strict good attitude है, strict is not a good attitude, but you need to understand the context specific. Remember all the students, listen properly. Teaching aptitude is a context specific paper, okay? क्वेश्चन स्पेसिफिक और आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर के ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू यूज, ठीक है, मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा ये चीज कि आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। आपको एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आप ऐसा ऑब्सेस्ड मत रहो कि यही होना, मतलब मैंने ये पढ़ा था बुक में तो यही होगा। यू नीड टू चूज द ऑप्शन। देखो टीचर को नॉलेजेबल नहीं होने से नहीं चलेगा। मैंने पूरा स्पेसिफिकली आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आज के जो क्लास में मैंने आपको बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ए टीचर इज योर सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टीचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, सब्जेक्ट नॉलेज होता है, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट नॉलेज टीचर ही नहीं बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉलेजेबल नहीं है तो टीचर बन ही नहीं पाएंगे। टीचर मस्ट बी नॉलेजेबल। मैंने आपको एक सेंटेंस एक पढ़ाया था, टीचर मस्ट बी क्यूरियस, आज ही पढ़ाया मैंने आपको, टीचर मस्ट बी क्यूरियस। तो टीचर क्यूरियस नहीं है तो टीचर, अच्छा टीचर बनने के लिए क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियोसिटी इज गुड क्वालिटी। क्यूरियोसिटी होगा तभी इनोवेशन आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। मैंने आपको बताया था एंथुसियास्टिक, टीचर मस्ट बी व्हाट, एंथुसियास्टिक। मैंने आपको ये 3 चीज पढ़ाया था, दीज आर गुड क्वालिटी। मैंने ये नहीं बताया कि स्ट्रिक्ट गुड क्वालिटी है, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बिकॉज दे आर वीक स्टूडेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रिक्ट गुड क्वालिटी है, ठीक है। तो इस यहाँ पे तुमने एलिमिनेशन टेक्निक से 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। जो ऑप्शन बचा यू हैव टू सिलेक्ट दैट। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा हेल्प करता है एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन को देख के ऑब्सेस्ड मत रहना कि ये मतलब बोले थे सर तो ये होगा। ऑप्शंस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रिक्ट के अलावा आप किसी और को छू ही नहीं सकते बिकॉज ऑल आर एप्रोप्रिएट, दीज आर गुड क्वालिटी। स्ट्रिक्ट कभी गुड क्वालिटी नहीं होता है। देखो जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ठीक है, जो आप आगे पढ़ोगे। रीइंफोर्समेंट होता है 3 तरीके का, ठीक है। एक होता है पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और तीसरा होता है पनिशमेंट, ठीक है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है पनिशमेंट बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, तो पनिशमेंट तो हटा ही देते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेल डन, ऐसा हम बच्चों को बोलते हैं, ठीक है। ताकि बच्चा क्या करेगा, डू मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज गिवन टू एनकरेज मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स पाने के लिए, मोर पॉजिटिव रेस्पॉन्स पाने के लिए हम जो है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा बच्चा गलत काम करेगा तो भी उसको वेरी गुड, वेरी वेल बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट एप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर बच्चा गलत काम करता है क्या तब भी आप उसको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दोगे? मैं आपको बोलता हूं कि यूज इट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। प्रिफर दिस, यूज इट और प्रिफर दिस। जितना आप हमेशा जो है इसी को प्रिफर करो। बुक में भी लिखा है कि आप इसी को प्रिफर करो, ठीक है। लेकिन बच्चा गलत काम करता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, विच इज वेरी बैड थिंग, नॉन टॉलरेबल थिंग्स, ठीक है। तो क्या फिर भी आप उसको वेरी गुड, वेरी बैड बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। सो यू हैव टू डिस्करेज दैट, यू हैव टू डिस्करेज, ठीक है, डिस्करेज दैट हैबिट। उस हैबिट को आप डिस्करेज करोगे। तो डिस्करेज जो करते हैं उसको हम नेगेटिव रिस्पॉन्स बोलते हैं और इट इज यूज्ड एज ए लास्ट रिजॉर्ट। इसको हमें एज ए लास्ट रिजॉर्ट की तरह, मतलब आपके पास अगर कुछ भी नहीं है बच्चे को समझाने के लिए तब आप इसको यूज करते हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स। वेरी बैड, यू शुड नॉट डू दिस, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, इस तरह से बात करोगे। बट इसको पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। पनिशमेंट दोगे तो आपका जॉब चला जाएगा, ठीक है। तो पनिशमेंट नहीं दोगे। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, अगर आप बच्चा अच्छा काम कर रहे हो तो उसको हमेशा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दोगे, लेकिन अच्छा नहीं करे तो उसको नेगेटिव बताओगे। तो ये तुमको देखो मैं कुछ बताने के लिए रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट ही बता दिया, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, आपके सामने जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना पड़ेगा, मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन, ठीक है।
जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया फ्रेंड बताया, ठीक है, लीडर भी बताया, मैंने आपको फादर भी बताया। क्वेश्चन है हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स, टीचर का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। मैंने आपको फ्रेंड भी बताया, लीडर भी बताया, फादर भी बताया, ठीक है, और मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल नॉन, तो कौन सा चूज करोगे बताओ। Father like आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे सर आपने फ्रेंड भी बोला था, सर आपने लीडर भी बोला था, सर आपने फादर भी बोला था, तीनों मैंने बोला था, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दिस हैपेंस इन टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल गलत नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग कि यू हैव टू बिकम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। क्लियर है, समझ गए ना? आपको Yes, sir. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फादर नहीं दिया है, यहाँ पे फादर नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है लाइक ऑथोरिटी, अब कौन सा चूज करोगे बताओ। friend. अब फ्रेंड हो जाएगा। देखो कॉन्टेक्स्ट बदल गया, ऑप्शन बदल गया, तो आंसर बदल गया, समझ गए? तो वही है, आपको इन टीचिंग एप्टीट्यूड यू हैव टू बिकम कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, यू हैव टू बिकम व्हिच काइंड लाइक क्वेश्चन इज देयर, आपको वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाएगा ना, तो ये भी बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लासरूम, टीचर क्या होता है, इन ए क्लासरूम टीचर क्या होता है, ठीक है, इन ए क्लासरूम, Leader. जब इन ए क्लासरूम बोलेगा, यहाँ पे फादर भी दिया होगा ना, तो वो नहीं होगा, लीडर होगा। बिकॉज इट इज सेइंग इन ए क्लासरूम ए टीचर शुड डू व्हाट, टीचर इज द लीडर ऑफ द क्लास। In a classroom the teacher should behave or should lead, should do what, so or should behave with what, like what, leader, because classroom में टीचर को लीडर माना जाता है। बट इन जनरल आपको क्वेश्चन पूछता है कि what should be a behavior of a teacher toward the students, that is in general context is asking, so in general हम उसको क्या बोलते हैं, फादर लाइक रिलेशनशिप बोलते हैं। बट जब क्लास का बात आता है, क्लास में लीडर क्यों बोलते हैं, बिकॉज टीचर लीड द जनरल डिस्कशन ऑफ द थिंग्स। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बदल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन बदल जाएगा तो उसका ऑप्शन बदल जाएगा। ओके, which a teacher should not, which kind of behavior a teacher should not do, ठीक है, यहाँ पे ये 3 दिया लिखा है ऑथोरिटी, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए, ऑथोरिटी हो जाएगा, Authority. सो टीचिंग एप्टीट्यूड इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ये रीजनिंग या इंग्लिश जैसा नहीं है। देखो रीजनिंग में क्या होता है, एक तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, या ट्रिक है, वो ट्रिक को यूज करोगे तो एक ही आंसर आपको मिलेगा, ए होना चाहिए तो ए होगा, बी होना चाहिए तो बी होगा। इंग्लिश में भी सेम है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड इज सब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट। मुझे कुछ और लग सकता है, आपको कुछ और लग सकता है, ठीक है, बट आपको मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है उसमें नहीं, हमको वो देखना है कि क्या हमारा जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में या फिर जो एग्जाम्स जो हुआ है एनटीए के द्वारा जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की में क्या दिया है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जैसे फॉर एग्जांपल चैलेंज के लिए आपको देना है, तो मैंने ऐसा बोला था या किसी और ने ऐसा बोला था, उसको नहीं दिखा सकते हम। कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या एनटीए का कोई आंसर उसको दिखा सकते हैं, या एनसीईआरटी में कुछ लिखा है वो दिखा सकते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दोस गवर्नमेंट सोर्सेज और एनटीए सोर्सेज, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन। जो मैं यहाँ पे बुक के अंदर, जो हमारे जो टीचिंग बुक के अंदर है, कैन ट्रस्ट बिकॉज वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स। क्लियर? इसमें मेरा थॉट प्रोसेस बहुत कम होगा, जो गवर्नमेंट चीजें हैं दैट्स ऑल दोस थिंग्स आर कंपाइल्ड, ठीक है, क्लियर? Yes, तो sir. टीचिंग एप्टीट्यूड में किसी का थॉट प्रोसेस काम नहीं आता, जो गवर्नमेंट ने बोला है दैट विल फॉर्म। ओके, सो दैट्स द थिंग। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, थोड़ा बहुत पनिशमेंट देना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो पनिशमेंट देना, बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है, क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है, तो ये सुनो पनिश करना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा, बट नहीं कर सकते ना हम, नहीं, वी कैन नॉट डू बिकॉज गवर्नमेंट ने तो बैन कर दिया है। मुझे लगता है करना चाहिए, आपको भी लगता है थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, बट वी कैन नॉट डू बिकॉज गवर्नमेंट हैज बैन्ड दिस। सो दैट्स व्हाई टीचिंग एप्टीट्यूड इज ए व्हाट, although it is a subjective paper, but we have to rely on the government document or NTA question or like this. Okay. Okay, so thank you everyone. Class is over. You can leave now. I hope you understood. Class was effective. Okay. Yes. Okay, so thank you everyone. Thank you, You can sir. leave. Thank you, sir. Good night.